Hey guys, Assalamu alaikum. I hope all of you are doing well. We'll be starting in just a minute, so make sure to get a bottle of water or some tea alongside. Take, it's going to be an hour-long session, so you have something to just bite on and chew on. इसके साथ में do make sure that you have a notebook or something alongside as well, ताकि if we mention any important points, you can note that down. And thirdly, we have the entire stream going out live on YouTube. So make sure also share the link with your friends, your family, whoever is applying to AQ and all the other private universities in Pakistan. We'll start by 8:11. Okay, so just a minute. I also have the YouTube channel and the video alongside playing on my phone. So whatever questions you guys have, just keep sending them over there, and I will keep asking our host, and I'll try to answer them as much as possible as well. Right? Let's start. Just give me 1 second. So, Assalamu alaikum everyone. I hope all of you are doing well and are having a great time. My name is Stan Mankani, and I am one of the co-founders of Premed.pk, and I'll be hosting and also answering some questions related to the private universities in Pakistan. So, I'm going to start off. I like to keep my sessions interactive. I like to ask a lot of questions. So, I'm going to keep asking people about something regarding the entire admission process. So, just make sure to use the chat box and answer my questions. Okay? So this is one of our most awaited sessions of this year. There are literally around 2 lakh students who give the MDCAT every single year, and a lot of people aspire to apply to medical universities. Hamza, can you go back to my own slide, please? I'm going to introduce myself first. I'll mention when to move the slide, okay? So first things first, so a lot of people have been demanding for this session. बहुत बच्चे बोलते हैं कि सर हमें pre-med के जरिए and बाकी resources के जरिए academies and for example our seniors, we know about the MDCAT, we know about the NUMS exam, but the private universities जो पाकिस्तान में हैं, namely AQ, Dow, AQ, sorry, AQ, Shifa, then we have, for example, Ziauddin in Karachi. A lot of students ask, sir, inka admission process is very shady, in the sense that it's very, like a very big gray area. Okay, what are the requirements? How is the exam like? Are there any past papers, for example? इसके साथ में kids ask कि sir fees कितनी होती है, scholarship कितनी होती है, financial aid कितनी होती है. So there's a lot of questions that are asked. So हमने कहा कि हम एक पूरा amalgamation बना दें of how the private universities operate in Pakistan, and इसके साथ में we can answer all the questions that the students have. So just to introduce myself, जिस तरह मैंने बताया, I'm a fifth year medical student at the Aga Khan University. I went to Dow in my first year, and then I reapplied to AQ. So I have a very fair idea of how Dow is compared to AQ. A lot of my friends are currently in Dow as well, but उनकी graduation बहुत करीब है. They're giving their last final exams prof के. So like a lot of students ask me कि is Dow versus AQ also worth it? There's a big fees difference. So I'll try to cover that as well. इसके साथ में there's this quote that I've mentioned over here. It's Steve Jobs' quote कि we're all here to actually make a dent in the universe, or otherwise why even be here? I think I really resonate with this because the idea of Premed.pk was the fact that I realized a lot of students in Pakistan are very passionate, not just students, even their parents, their siblings, their family members, khala, mama और चाचू को ज़्यादा फर्क पड़ता है कि वो यार इसका बच्चे का एडमिशन क्यों नहीं हो रहा है in medical universities, right? You all will relate as well. But the idea was कि जो guidance है, जो proper resources है, they're missing, and that's why we set out to work on pre-med. And over the last 3.5 years, we've helped around 120,000 students get into their dream medical schools, and students from all across Pakistan. जब अभी vote जब आया, I was so happy to see that there were kids from cities I've not heard of. There were kids from schools I've not heard of who had used pre-med,
and had gotten in. So मैं सबको यही बोलता हूँ कि यार, regardless of wherever you are, pre-med is trying to level the playing field. You know, KGS, Lyceum, Nixer के बच्चे AQ में भरे हुए होते थे, but इस दफा KGS का I think सिर्फ 4 बच्चों का हुआ है, Nixer का I think 5 बच्चों का हुआ है. So मैंने अपने alma mater को sort of हरा दिया है, and I've gotten other kids from other provinces in as well. So I'm very happy about that. So moving on, I'll introduce my other two speakers as well. Can you please move on, Hamna? So we have Fatma over here. Hi Hi everyone. everyone. Yeah, Fatma, you can go ahead and introduce yourself. Yeah, so my name is Fatima Amar. I am an MDCAT aspirant like you guys, and I'm really passionate about medical. Like, I love helping people. So that's why I'm here today. I'm going to tell you all about private universities like Ziauddin, UHS universities, and etc., etc., all of those things. Awesome. Thank you, Fatma. And Mariam, can you please unmute yourself and introduce yourself as well? Assalamualaikum everybody, this is Mariam and I am a campus associate at Pre-Med and we're going to be here to inform you guys about everything जो कि private universities के बारे में है and I hope it helps you guys a lot. Awesome. Let's move on. सबसे पहले हम बात करते हैं आगा खान यूनिवर्सिटी के बारे में, ठीक है ना. सो सबसे पहले तो जैसे मैंने बताया कि किड्स आस्क अस अबाउट द एडमिशन क्राइटेरिया. सो मैं जो भी आपको यहाँ पे बताऊंगा ना फैक्ट्स, आई जस्ट वांट टू मेंशन एज वेल दैट प्रीमेड इज नॉट एफिलिएटेड विद AQ in any possible way. That's a disclaimer I want to give. We are students running this platform, right? And इसका ये मतलब कुछ भी नहीं, हरगिज नहीं है कि जो हम बोल रहे हैं वो AQ की तरफ से आ रहा है. AQ has its own policies and we are just telling you from the website, from their resources, what they've mentioned, right? And trying to make it very easy for you guys. तो सबसे पहले बच्चे बोलते हैं सर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होती है, लाइक यू नो व्हाट ऑल इज रिक्वायर्ड, यू नो कैन आई इवन अप्लाई टू AQ, एंड दैट्स अ वेरी बर्निंग क्वेश्चन कि अगर यही आपको नहीं पता होता देन यू कांट रियली अप्लाई, यू कांट रियली एक्सपेक्ट कि आपका एडमिशन होगा. सबसे पहली बात तो ये है कि आपके O लेवल या मैट्रिक में देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि यू हैव some subjects जिसमें हमारे पास है इंग्लिश, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, एंड देन ऑब्वियसली जो बाकी आपके पास लेट्स से उर्दू होता है, पाकिस्तान स्टडीज होता है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं. सो ऑल रिस्पेक्टिव स्कूल्स हैव दिस requirements कि आपको पाकिस्तान स्टडीज, इस्लाम या तो उर्दू देना ही देना है, ठीक है ना. देन यू हैव फॉर एग्जांपल इंग्लिश, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत जरूरी है. सो यू नीड टू हैव O लेवल बायोलॉजी ऑन योर ट्रांसक्रिप्ट फ्रॉम O levels, वरना आपका एडमिशन नहीं हो पाता, राइट. किड्स आस्क कि सर O लेवल में क्या ग्रेड, सो आई टेल देम कि O लेवल में कोई ग्रेड्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, यू कैन यू नो just get through it and doesn't matter. But the point being कि आपकी equivalency is actually determined by your O levels and A levels, right? Especially your O levels. It's कि अगर for example आपका A है तो 85 आएगा, B है तो 75 आएगा, A स्टार है तो 92 differentiate करता है. तो for example अपने O level पे if you are an O level kid right now focus नहीं किया था, so you are in a bit of a trouble because the issue being कि आपकी equivalency तो वहां से बनेगी, and कल अगर AQ में नहीं भी होता for example, तो you need to go to Dow, you need to go to for example let's say KIMU and good universities, तो वहां पे you sort of not do well because at the end आपकी O level या equivalency आपको नीचे लेकर आ जाती है. So that's the first problem. इंटर लेवल्स की अगर बात करें तो आपको बेसिकली इन A levels मिनिमम B की रिक्वायरमेंट होती है. सो इफ यू हैव अ B इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, दैट इज इनफ, राइट. बच्चे बोलते हैं सर A स्टार से फर्क पड़ता है, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता. वंस यू हैव दैट B यू आर फाइन. सो यू आर कंसीडर्ड इन द सेम लाइट एज समवन हु हैज ट्रिपल Bs. तो मेरे पास बैच में बच्चे हैं जिनके पास A levels में ट्रिपल B भी आ चुके हैं. मेरे बैच में बच्चे जिनने A स्टार के साथ में डिस्टिंक्शन भी मारी हुई है, बट वेयर दे द A स्टार स्टूडेंट्स प्रेफर्ड नहीं, because AQ has its own test. AQ prefers its own test over the grades coming from A levels or Inter, ठीक है ना. इसके साथ में एक sort of एक misnomer था, ये बच्चे are confused about this one thing कि सर are SAT 2 subjects considered या SAT 1 considered. तो yes, when I was applying, so basically around 25 का जो batch है, so in 2020 the SAT 1 was considered for admissions for international students. But now the way it works is कि if you are an international student, let's say आपने high school पाकिस्तान के बाहर से की हुई है या आपने पाकिस्तान से कर रहे हो, SAT 1 will not be allowed. तो आपको बेसिकली AQ का टेस्ट देना है. So AQ test is considered, it's conducted in a lot of cities in Pakistan. उनकी वेबसाइट पे मेंशन हुआ हुआ है. Our team will also mention the website of AQ in the comment box. साथ में जो उनका एक ईमेल है mbbsquery@aq.edu, वो भी हम लोग शेयर कर देंगे, ठीक है. Two things. So एक तो you can go and ask over there.
अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान देर आर अ फ्यू सेंटर्स, एक अमेरिका में भी होता है, एक कई सऊदी में भी होता है. सो एवरी ईयर दे चेंज कि कहाँ पे होता है, कभी दुबई में होता है. सो दे ऑल्सो कंडक्ट देयर AQ टेस्ट समवेयर इंटरनेशनल एज वेल. सो किड्स डोंट हैव टू फ्लाई ऑल द वे टू पाकिस्तान, वो वहाँ भी हो जाता है. दिस ईयर की एग्जैक्ट जो लोकेशंस है वो नहीं बताई गई हैं, बट दे विल बी फाउंड ऑन द वेबसाइट वंस यू गाइस रजिस्टर फॉर इट इन द कमिंग मंथ्स. ठीक है. अच्छा, सो एक बात ये हो गई. इसके साथ में आपको बस समझने की जरूरत है कि ओ लेवल्स का मैंने बताया कि कोई ग्रेड रिक्वायरमेंट नहीं है, बट यू नीड टू हैव बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स. एंड ए लेवल्स में यू कैन हैव बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बट यू नीड टू हैव ट्रिपल बी. दैट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स. अगर इससे नीचे आता है, लेट्स से किसी का BBC आ जाता है, सो यू कैन नॉट अप्लाई टू AQ. दे विल जस्ट फ्लैट आउट रिजेक्ट यू. यू कैन गेट 100% इन देयर AQ टेस्ट, बट मिनिमम रिक्वायरमेंट इज ट्रिपल B. ठीक है. कैन यू प्लीज मूव ऑन? So, इसके साथ में अब हम लोग बात करते हैं अबाउट द AQ टेस्ट पैटर्न. दिस इज अ बिग क्वेश्चन, कि सर AQ का टेस्ट पैटर्न किस तरह अलग है. तो मैं सब बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ कि यार दिस इज वेयर योर ears should just perk up, because the AQ टेस्ट पैटर्न is very different compared to the exams we've been given, right? मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. मैं एक A लेवल बैकग्राउंड से हूँ, तो हमारा जो P1 पेपर होता है AS का, उसमें we have MCQs. बट मैं सबको ये बताता हूँ कि जो AQ के MCQs है, they're very different compared to what we have been practicing or experimenting in our A levels, because I think जो AQ के questions होते हैं, they're very logical. तो वो they make you think. सही है ना. कोई मजे से आप जाके बस बोलो कि मैंने किताब रट्टा मारी हुई, तो मैं आराम से देख के आ जाऊंगा पेपर. I don't think so. That's not the way AQ exams work, right? I've given the exam twice. I've talked to people who've given the exam thrice. अब तो पॉलिसी ये आ गई कि only apply to AQ twice. तो मतलब जैसे let's say मैंने 2019 में अप्लाई किया था, 2019 में मेरा नहीं हुआ था. ठीक है. टेस्ट क्लियर नहीं हुआ था, मैंने 2020 में वापस दिया. सो दैट वाज सॉर्ट ऑफ माय लास्ट अटेम्प्ट, राइट. उसके बाद मैं एक और दफा AQ का टेस्ट नहीं दे सकता था. तो इन टोटलिटी आप बेसिकली आप AQ 2 दफा अप्लाई कर सकते हो आप. ठीक है. एक तो ये पॉलिसी है. दूसरा, जो मैं टेस्ट की बात कर रहा था, तो AQ टेस्ट ना थोड़ा सा आपको इन द सेंस कि मैं बता था लॉजिक होती है. तो दे विल मेक यू रिमेंबर अ फैक्ट. सही है ना. बट वो फैक्ट वो MD कैट के साथ आपको पूछने लेंगे. They will make you also use that fact and maybe make an equation out of it, make you use that same fact in some other scenario and try to answer the question. तो ये बहुत एक मजे का भी एग्जाम होता है. मुझे लाइव मजा आता है, बिकॉज आपको थोड़ा लगता है कि यार मैं मेडिकल वाले एग्जाम में आ गया हूँ, थिंकिंग थ्रू इट. बट अगर तैयारी नहीं की हुई होती सही तरीके से, देन यू सॉर्ट ऑफ फॉल्टर. सो जो टेस्ट पैटर्न है वो इस तरह है कि देयर आर 50 क्वेश्चंस ऑफ साइंसेस. दे आर डिवाइडेड इन 2 सेक्शंस. सो देयर इज साइंसेस का सेक्शन, देन देयर इज अ मैथ्स एंड SR का सेक्शन. सो ये ना साइंसेस की बात करें तो उसमें हमारे पास बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं. बट इसमें कैच ये होता है कि देयर इज नेगेटिव मार्किंग. बच्चों को लगता है कि नेगेटिव मार्किंग हर सवाल पे होती है. नहीं, सिर्फ साइंसेस के सेक्शन में होती है नेगेटिव मार्किंग. और वो इस तरह होता है कि लेट्स से मैंने क्वेश्चन सही किया तो आई गेट 1 मार्क फॉर इट. मैंने क्वेश्चन छोड़ दिया तो मुझे उसके लिए ना मार्क मिलता है ना मेरा कोई मार्क जाता है. बट अगर मैंने एक सवाल गलत किया, so I sort of get minus 0.25 as well. तो वो बेसिकली आपका sort of minus 1.25 हो जाता है, बिकॉज आपका वो एक सवाल का एक मार्क भी चला गया होता है, वैसे आपको minus 0.25 हो जाता है. बट दिस इज ओनली इन द साइंसेस सेक्शन. 50 क्वेश्चन होते हैं साइंसेस के. उसमें बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स का कोई फिक्स कोटा नहीं. कभी बायोलॉजी कैन बी व्हाट मे बी 16-17, कभी केमिस्ट्री कैन बी अ बिट हायर. तो वो कोई होता नहीं है. मैथ्स एंड SR इज द अदर सेक्शन. इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है. और इसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि जो हम लोग यूजुअली रिडल्स पूछते, कभी कभी कैंगरू मैथ्स के जो सवाल होते हैं, कभी SAT 1 का जो मैथ्स का सेक्शन होता है, वैसे सवाल आते हैं. देयर इजी. बट आई थिंक जो मैथ्स एंड SR का जो रियल मसला आता है ना, वो होता है टाइम का. सही है. टाइमिंग इज अ बिग इशू ओवर हियर. तो मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कि भाई देयर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू रिमेंबर अबाउट द AQ एग्जाम. एंड अभी मैं आपको बताऊंगा आगे जाके जो हमारा कोर्स भी है उसमें हम यही चीजें डिस्कस करते हैं बच्चों से कि यार एक तो आप कंटेंट पढ़ लोगे, यू कैन बी अ स्टार स्टूडेंट और आप डिस्टिंक्शन वाले बच्चे हो सकते हो. बट द एग्जाम डे इज वेयर एवरीथिंग कम्स इनटू प्ले. इफ यू आर नॉट अ स्ट्रांग एप्लीकेंट इन टर्म्स ऑफ अप्लाइंग योर लॉजिक, और आपके पास टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है, देन यू विल रियली सफर. तो जो हमारा कोर्स है उसमें हम यही चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं. दैट्स व्हाई वी हैड अ ग्रेट सक्सेस रेट, बिकॉज हम बच्चों को पढ़ाई तो करवा देते हैं, राइट. एवरी एकेडमी, एवरीवन विल डू दैट. बट जो असल होता है ना यार, फॉर गेम डे बच्चे को तैयार करवाना कि यार एग्जाम में किस तरह आपको सोचना है. अगर ज्यादा टाइम लगा रहे हो सवाल के लिए तो क्या पॉलिसी लगानी है. अगर सवाल में कोई मसला वसला है तो आपको क्या करना है. फॉर एग्जाम्पल, हाउ डू यू डू प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. These are all very important tactics, and we have never ever had to use process of elimination, right? When you come to medical school, you would realize that this is one of the ways how you are tested in medical school. So I really appreciate the AQ exam as well. तो आपको वो उसी में ना तैयारी शुरू करवा देता है कि यार अगर आपके अंदर दिमाग चलता है how to eliminate the option, then come to an answer. So that is how it works.
आई गिव एन एग्जांपल, पता नहीं कितने बच्चों को एंडोलिम्फ का पता होगा, बट मेरे अभी तक मुझे याद है एग्जाम में एक सवाल आया था, इफ आई रिमेंबर इट vaguely, it was about some endolymph or something, एक डायग्राम दिया हुआ था और मैंने वो नहीं पढ़ा हुआ था। कौन से सिलेबस में है, पंजाब में है, फेडरल में है, सिंध में नहीं है, वो एक अलग बात है, डिबेट है। बट वो सवाल ना देख के ना आप एलिमिनेट कर पा रहे थे, आई थॉट ओके एंडोलिम्फ है, पेरिलिम्फ है, एंडो मतलब अंदर होगा तो यूं करो, मार के लेबलिंग हुई है, दिस दैट करके मैंने आंसर मार किया था, एंड आई केम बैक टू आई गॉट इट करेक्ट। And the reason was कि in the exam, if you've gotten enough practice, if you've gotten enough the technique of how to eliminate options, तो आपका sort of दिमाग चल जाता है and you get through it, right? And the cutoffs are always very not rigid but very like flexible. People see कि यार AQ में ना एक sort of threshold system है कि यूं नहीं है कि आपको 85% मारेंगे तो ही आप पास होगे। They see कि यार 5,000 बच्चों ने दिया एग्जाम, सही ना, पेपर इस दफा मुश्किल था या आसान था, दे बिल्ड अ थ्रेशोल्ड कि यार हमें टॉप 350 बच्चों को इंटरव्यूज देने हैं, तो वो 350 बच्चों का जो भी स्कोर लाइक कर रहा होता है, लेट्स से वो 75% में लाइक कर रहा है या 60% में लाइक कर रहा है, तो इसके बेसिस पे आपको एडमिशन मिलता है। तो इट्स गुड बिकॉज अगर एग्जाम मुश्किल आता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको लेंगे नहीं, दे विल बेसिकली जस्ट फिल्टर आउट द टॉप 350 किड्स एंड उनको वो इंटरव्यू चांस देंगे। ठीक है, सो हमने बात कर ली अबाउट मैथ्स एंड एसआर। सबको मैं सजेस्ट ये करता हूँ कि जब आप नेगेटिव मार्किंग वाले सेक्शन में जाते हो, जब साइंस पे जाते हो, तो यू मेक श्योर कि आप थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चंस कर रहे होते हो। बट जब आप मैथ्स एंड एसआर में करते हो एंड इफ यू डोंट हैव द टाइम, अगर बिल्कुल टाइम क्रंच आ गया, आप तुक्के भी लगा सकते हो, बिकॉज वहां से भी आपका शायद एक दो सवाल सही हो जाए। एक तो ये बात है। दूसरा ये कि भाई बच्चे पूछने के सर बेस्ट सिलेबस, बेस्ट बुक कौन सी है। सो आई ऑलवेज टेल देम कि जो पंजाब और फेडरल की किताब है दैट इज द बेस्ट। इफ यू आर अ सिंडिकेट देन आई थिंक पंजाब फेडरल का पढ़ना बेस्ट रहेगा। एंड देयर आर अ फ्यू हाई यील्ड चैप्टर्स एज वेल। वी हैव ऑलवेज बीन वेरी हम थोड़ा वेरी प्रो AQ है कि हम AQ की काफी चीजें शेयर कर रहे होते हैं, राइट, अलोंगसाइड जियाउद्दीन एंड शिफा एज वेल। एंड इवन फॉर एग्जांपल जो बाकी हमारे पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है, तो मैं सबको सजेस्ट ये करता हूँ कि जस्ट कीप मेकिंग श्योर कि आप प्रीमेट के लेकिन न्यूज रूम को फॉलो कर रहे हो, हमारे इंस्टाग्राम यूट्यूब को फॉलो कर रहे हो, बिकॉज हम वहाँ पे इस तरह की सारी चीजें शेयर कर रहे होते हैं। तो जस्ट मेक श्योर कि हम जो हाई यील्ड की टॉपिक्स हमने शेयर की भी इंस्टाग्राम पे, आई ट्राई टू मेक श्योर कि हम उसको वापस एक दफा स्टोरी पे लगा दें, आप वो भी जाके देख लो कि यार इस तरह हमारे ये टॉपिक्स हाई यील्ड है। जरूरी नहीं कि वहीं से सवाल रिपीट हो, बट इन द लास्ट 4-5 years आई मे बी सीन अ ट्रेंड कि यार यहाँ से सवाल आ सकता है, फॉर एग्जांपल, सही है ना। अच्छा, पास्ट पेपर्स की बात करते हैं तो AQ हैज नो पास्ट पेपर्स एंड वी डोंट प्रमोट द पास्ट पेपर कल्चर एट ऑल पे AQ। यस, वी हैव सम मॉक्स मेड। मॉक्स का मतलब क्या है कि ये सवाल really represent what type of questions are asked in AQ। does that mean कि वहां से रिपीट होंगे सवाल? बिल्कुल नहीं, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, कभी कभी हो भी जाते हैं। सो इट्स नॉट इन आवर इख्तियार, ये हमने खुद के सवाल बनाए हुए। बट वहां से बेसिकली हमें लगता है कि यार अगर आप AQ का एग्जाम देना चाह रहे हो तो इस तरह के सवाल में यू शुड बी रियली हैविंग अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अगर बात करें फॉर एग्जाम्पल टाइम क्रंच की, तो देखिए AQ का एग्जाम is a big of a time crunch वाला problem. So people who are reapplying they have this advantage कि उनको थोड़ा आइडिया होता है कि किस तरह AQ का पूरा दिन चलता है। So हमारे पास और बहुत वीडियोस बनी हुई हैं कि हम बताते हैं बच्चों को कि एग्जाम डे पे क्या होता है, how do you go inside, सुबह में नाश्ता क्या करना होता है, how long the exam is, अगर कोई मुश्किल सवाल आ गया तो क्या करना है, उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपको एलिमिनेशन के बाद किस तरह से चूज करना है, कितने सवाल आप छोड़ सकते हो। So these are all very points जो हम लोग डिस्कस करते हैं in our course as well. We have for example गाइडेंस सेशंस एवरी वीकेंड हैपनिंग, जहां पे हम जाके सिर्फ यही डिस्कस करते हैं कि किस तरह आपकी तैयारी फॉर AQ कैन बी प्रिपेयर्ड बेस्ट। ठीक है, सो आई होप दिस एंटायर सेक्शन इज कवर्ड। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हमना। ठीक है, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन जिससे मेरा पूरा व्हाट्सएप भरा हुआ होता है। एवरीवन हैज माय नंबर बट आई लव हेल्पिंग आउट पीपल। सो द आइडिया बीइंग कि लोग बच्चे मुझे पूछते हैं कि सर बताएं कि स्कॉलरशिप और एड और फाइनेंशियल एड का क्या सीन होता है AQ में। वेरी गुड क्वेश्चन। अब मैं बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि देखो द वे इट वर्क्स इज कि AQ में देयर इज डिफरेंट प्रोग्राम्स रनिंग। देयर इज अ स्कॉलरशिप, देयर इज अ लोन, देयर इज एन एड, सही है, देयर इज डिफरेंट थिंग्स। तो तीनों चीजें अलग अलग बताने की जरूरत है। पहली बात तो ये कि बच्चे फिक्र करते सर हमें एड नहीं मिलेगी। मैं बच्चों को समझाता हूँ, देखो पहला हर्डल इज गिविंग द AQ टेस्ट। अगर मैं अभी से ही बोलूँ नहीं मुझसे ये नहीं होगा या मुझे वो चीज नहीं मिलेगी तो फिर फायदा क्या है। फॉर एग्जांपल व्हाई आई इवन हैव दैट एस्पिरेशन मुझे AQ की लाल दीवार में आके डॉक्टर बनना है, देन जस्ट गो टू डाउ, गो टू जियाउद्दीन, गो टू शिफा एंड जस्ट बी हैप्पी अबाउट इट। मैं तो सबको बोलता हूँ पहले अपने अंदर एक एनर्जी लाओ कि यार नहीं, वी कैन डू इट, वी नीड टू पास द AQ टेस्ट। एड मिले, स्कॉलरशिप मिले, जो भी मिले वो अल्लाह मालिक है। सम थिंग्स आर आल्सो इन गॉड्स हैंड। हर चीज अगर आपके हाथ में आ जाएगा तो फिर फायदा है क्या दुनिया का, राइट। सो पहली बात तो ये है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार AQ हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल स्कॉलरशिप, एड, लोन प्रोग्राम।
बट वो आपके इख्तियार में नहीं है, दैट इज इन गॉड्स हैंड, वो आपको मिल जाएगा इफ यू आर डिजर्विंग। आई टेल हाउ यू गेट इट एज वेल, बट पहला आपको गोल होना चाहिए कि यार चलो अगर मैं अफोर्ड नहीं भी कर सकता, मुझे लगता है कि मुझे एड भी नहीं मिलेगी, एटलीस्ट गिव द AQ टेस्ट, गेट दैट कॉन्फिडेंस इन यू कि मैंने AQ को रिजेक्ट किया था, मेरा AQ में हो गया था, आई चोज नॉट टू गो बिकॉज XYZ रीजंस, एंड दैट रियली गिव्स यू कॉन्फिडेंस। आई नो पीपल जो रिजेक्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल, जिनका नहीं होता, वो हमेशा दिल में ना एक ख्वाहिश रह जाती है कि यार AQ काश हो जाता, काश। वो काश को नहीं रखना है, यू हैव टू गिव द टेस्ट, ट्राई योर लक आउट एंड जस्ट वर्क हार्ड। अगर आप AQ की तैयारी अच्छी तरीके से करोगे तो आपकी MD-CAT की तैयारी भी साथ में हो रही है। कोई ऐसा नहीं कि AQ कोई अलग से कॉन्सेप्ट या सिलेबस पूछ रहा है जो शायद आपका MD-CAT पे कवर नहीं होगा। एक्चुअली आप और कॉन्सेप्ट से फोकस करोगे rather than रट्टा, और आपके MD-CAT में भी आपकी हेल्प हो जाएगी। एक बात बहुत जरूरी है about the scholarship and the aid and loan. So basically AQ has a loan and aid system. So basically जो भी बच्चों का एडमिशन होता है, they offer them कि यार आप लोग को अगर एड की या लोन की जरूरत है तो आप जरूर अप्लाई करो। एनीवन कैन अप्लाई, कोई ये नहीं कि स्पेसिफिक माइनॉरिटी या कोई लोकेशन या कोई सिटी के बच्चे या कोई फॉर एग्जांपल स्कूल के बच्चे या कोई FSC A लेवल, नहीं, everyone who gets in, the 100 kids who get in, they can all apply, ठीक है। एंड उनको हम देते हैं नीड सेंसिटिव की बेसिस पे, इन द सेंस नीड बेस्ड, मतलब लेट्स से वी हैव 2 kids and one's father is the MNA of Sindh, for example, and the other's father is let's say not that well to do, तो ऑब्वियसली वी ऑल लोग नीड बेस का मतलब क्या होता है कि जो वेल टू डू नहीं है उनको मिलती है, सही है ना। उनके भी प्रॉपर लाइक ऑब्वियसली एक वेटिंग प्रोसेस होती है, दे गो थ्रू द फाइनेंसेस एंड ऑल, दे सी कि कितने सिबलिंग्स हैं, कितने फॉर एग्जांपल डिजर्विंग फॉर एग्जांपल लाइक इनकी इंडिपेंडेंस है, एंड उसकी बेसिस पे आपको लोन या एड मिलती है। आई बी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक द AQ स्कॉलरशिप एंड लोन एंड एड सिस्टम इज वेरी रोबस्ट। मैंने बहुत कम देखा है कि कोई बच्चा जो बहुत डिजर्विंग हो उसको नहीं मिले, राइट। आई थिंक द AQ एडमिन एंड फैकल्टी गोज अबव बियॉन्ड to give that person a supporting like role. And जहाँ तक आपका पूरा admission process है, the test is concerned, the interview is concerned, there is not even 1 ounce of thing यार आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपको हम लेंगे नहीं। I have never felt that and that's something I really respect AQ for. लोन और एड इस तरह होती है कि बेसिकली जो आपको लोन मिलती है वो आपको इस तरह मिलती है कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव फीस के साथ वो लोन मिल जाती है, सही है ना। लेट्स से अगर आपकी 25 लाख फीस है, आपको बोलेंगे यार 20 लाख आपकी लोन है, 5 लाख आपकी एड है। ऑफन फॉर एग्जांपल एड ज्यादा होती है, लोन कम होती है, लोन 5 लाख होती है, 20 लाख आपकी एड होती है। सो लोन वो होता है जो आपको रीपे करना होता है, बट रीपे करने का भी सिस्टम बहुत आसान है। सो यू डोंट हैव टू पे इमीडिएटली। 5 years आपका पूरा MBBS चलता है, वो आपसे 1 रुपया नहीं मांगते, सही है ना। 2 साल आपको वो बोलते हैं कि यार आप चलो 2 साल और चले जाओ, US चले जाओ, पाकिस्तान में काम कर लो, थोड़े पैसे कमा लो, एंड देन आप रीपे करना शुरू करो। और उसमें भी बहुत रिलैक्स गाइडलाइंस, बहुत रिलैक्स डेडलाइंस होती हैं, तो कोई इतना मुश्किल बात नहीं है कि अगर नहीं कर पे किए पैसे तो आपको निकाल देंगे, आपको बोलेंगे आप निकलो बीच में से, कैंपस में से, ऐसा कुछ नहीं होता। इवन आफ्टर योर ग्रेजुएशन 2 साल बाद दे लेट यू डू दैट। नंबर 2, इवन फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लेट्स से AQ से ग्रेजुएट किया, आपने बोला यार मैं AQ में एज अ डॉक्टर ज्वाइन कर लेता हूँ, तो आपकी जो फीस है ना, जो लोन होती है, वो आपकी माफ हो जाती है 2 सालों में। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि लॉट ऑफ स्टूडेंट्स प्रेफर कि यार हम लोग चलो पाकिस्तान में रहना चाहते थे, हम पाकिस्तान में रह के 2 लाख में 2 साल में अपनी पूरी फीस माफ करवा लेते हैं। जो एड होती है वो पूरी माफ हो जाती है। सो लाइक लेट्स से अगर आपको 20 लाख की एड मिली और 5 लाख की लोन मिली, आपको सिर्फ 5 लाख पैसे वापस रीपे करने, और आपकी एड जो है पूरी 20 लाख आपकी कंप्लीटली माफ हो गई, तो वो कभी आपको रीपे नहीं करने की जरूरत। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ में आप नेक्स्ट पेज पर आ जाए अगर हम ना, तो स्कॉलरशिप की बात करते हैं। सो AQ आल्सो ऑफर्स अ स्कॉलरशिप दैट इज बेसिकली फुल स्कॉलरशिप, मतलब इन द सेंस कि आपकी पूरी ट्यूशन फीस, यूनिवर्सिटी फीस, अगर 25 लाख फीस है तो पूरी के पूरे 25 लाख कवर्ड हो जाते हैं, सही है ना। तो दैट्स द वे स्कॉलरशिप्स वर्क। स्कॉलरशिप्स भी अगर नीड बेस पे होता है, तो जो भी फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा डिजर्विंग, सबसे टॉप 5 डिजर्विंग बच्चे होते हैं, उनको यूजुअली मिलती है। कभी कभी फॉर एग्जांपल आल्सो बेस्ड ऑन द स्कोर रिजल्ट्स मिल जाती है। द थिंग इज कि AQ टेल्स ऑन द वेबसाइट कि ये हमारी लाइक हैंड्स में है कि हम डिसाइड करते हैं कि हमें किस तरह देनी है स्कॉलरशिप, एंड दैट्स इन देयर हैंड्स। मैं सबको यही कहता हूँ कि यार आप अपना जो काम है ना, अपने जो तरफ से जो आप कर सकते हो, टेस्ट की तैयारी अच्छी करो, इंटरव्यू की अच्छी तैयारी करो, वो आप पहले करो। बाकी कुछ चीजें खुदा के हाथ में छोड़ दो, बी वेरी ऑनेस्ट इन योर एप्लीकेशन, एंड अगर डिजर्व कर तो मिल जाएगा। बच्चे पूछते सर इज AQ वर्थ इट इन टर्म्स ऑफ फीस। मैं अभी 5th ईयर में हूं, सही है ना, आई एम ऑन फुल पे, आई बी ऑनेस्ट, सही है ना, आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, आई थिंक इट्स कंप्लीटली वर्थ इट। मैं डाउ में दोस्तों को देखता हूं, मैं हर जगह देखता हूं, जो AQ की फैकल्टी है, जो AQ की फैसिलिटीज है, जो AQ की फॉर एग्जांपल एमिनिटीज है इन टर्म्स ऑफ SRC, हमारा स्पोर्ट्स सेंटर है, जिम्नेजियम है, जो हमारे एक्चुअली एकेडमिक्स है। मेरी अभी यूरोलॉजी चल रही है, सो इट्स अ सर्जरी रोटेशन, लिटरली देयर इज 1 डॉक्टर एंड देयर इज 1 स्टूडेंट। तो मैं उनसे पूरा इंटरेक्ट कर रहा होता हूँ, आई एम आस्किंग देम द गाइडलाइंस, आई एम आस्किंग देम, मैं पेशेंट से पूरी बातचीत कर रहा होता हूँ। एक जमाना था पीपल वुड से कि यार डाओ में ना ज्यादा आपको फॉर एग्जांपल एक्सपोजर मिलता है कंपेयर टू AQ। आई थिंक दैट्स कंप्लीटली
baseless, because मैं यहाँ बताता हूँ कि I've literally been doing examinations in the presence of faculty, in the presence of residents. I'm also doing histories, examinations, सब कुछ मैं कर रहा होता हूँ. I even make the plan and the doctor comes and listens to my plan कि हाँ यार ये सही है, ये सही है, ये सही नहीं है, let's do this. तो मेरी जो पूरी लाइक आई वुड से कि सॉर्ट ऑफ अगर यूरोलॉजी के क्लिनिक पे मैं देख रहा हूँ तो आई एम सीइंग लेट्स से 30 पेशेंट्स पर डे, एंड डॉक्टर के साथ मैं देख रहा हूँ, मुझे वो एग्जामिनेशन करते हुए देख रहे हैं सब कुछ, तो मुझे बहुत ज्यादा इस तरह एक सॉर्ट ऑफ पर्सनल टच मिलता है. जो डाउ में अगर 15-20 बच्चे होते तो वो कहाँ पे कवर हो पाता है. So this is very important. I think this is why I feel one of the reasons. दूसरा I think in terms of alumni and sort of obviously जो facilities available है societies के हवाले से, for example जो communication हमारे पास let's say society होती है, फला है where we talk to patients, give them funds, we talk to for example let's say हमारे administration, we have journal clubs, research, all of those reasons. I think AQ is completely unmatched. So you know other universities are also catching up. Dow, शिफा, जियाउद्दीन के बच्चे बहुत बेहतरीन जगह मैच के लिए जा रहे हैं, बट अभी थोड़ा सा टाइम है. तो अगर अभी चांस है तो आई वुड से कि कीप AQ एज योर फर्स्ट प्रायोरिटी एंड देन कंसिडर द यूनिवर्सिटीज. सही है, चलो लेट्स मूव ऑन. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हमना. So about the hostels, a lot of kids ask us, हंसते हैं भाई हॉस्टल का क्या सीन होता है. So हॉस्टल का ये सीन होता है बेसिकली गाइस कि समझने की जरूरत ये है कि AQ में हॉस्टल्स बड़े मजे के. बाय द वे अभी मैं एक हॉस्टल में बैठा हूँ, मेरे एक दोस्त का है, ही इज गॉन टू लाहौर फॉर अ फ्यू डेज. सो AQ हैज अ वेरी नाइस हॉस्टल सिस्टम. सो अगर लेट्स से 50 बच्चे कराची गए थे तो 50 बच्चे हॉस्टल हो सकते हैं फॉर एग्जांपल, एंड उसमें से आपको हॉस्टल मिलता है. इट्स अ वन रूम सिस्टम, एक रूम है, देयर इज अ कम्युनल बाथरूम्स, अगेन बॉयज का अलग हॉस्टल है, गर्ल्स का बिल्कुल अलग ही हॉस्टल है, मतलब कोई लिंक ही नहीं है. एंड उसमें आपको AC भी मिलता है, यू कैन हैव योर ओन फ्रिज, यू कैन हैव योर ओन बेसिन, एवरीथिंग. तो बड़ा अच्छा होता है हॉस्टल का सीन. सो अकोमोडेशन वाइज आई थिंक AQ इज वेरी वेरी गुड कंपेयर टू लम्स जहाँ पे AC नहीं होता. फॉर एग्जांपल किड्स आर शेयरिंग वन कॉमन रूम. देन फॉर एग्जांपल इसके साथ में other universities don't even have a proper hostel. तो यहाँ पे तो you get a desk, you get a bed, you get a गद्दा, सब कुछ मिलता है. तो बड़ा गुड सीन होता है. सही है. तो अगर हॉस्टल की बात करें तो आई थिंक AQ इज अनमैच्ड बिकॉज ऑफ दैट. सही है. इसके साथ में अगेन फॉर एग्जांपल हॉस्टल कभी कभी मिलने में थोड़ा मुश्किल होता है, but obviously Karachiites cannot take a hostel room. It's only for the non-Karachiites. So Karachiites have to come from home. जो non-Karachiites हैं, बुरेवाला, हरीपुर, लाहौर, जहाँ से भी आते हैं ना, for example, they get a hostel. And वो 5 साल के लिए होता है, उसका obviously एक अलग cost होता है. Every year it varies around 20-30,000 का होता है per month. But I think it's completely worth it because hostel life एक अलग ही मजा होती है, right? रैगिंग भी नहीं होती है AQ में, तो बड़ा बच्चे बड़ा अच्छा है. 5 साल के बाद कहते हैं मतलब हॉस्टल का एक अलग ही मजा है जो कराचियाइट्स मिस आउट करते हैं. एंड ऑब्वियसली सो क्लोज, कैंपस इज सो क्लोज कि जो आपका लॉजिस्टिक्स और खर्चा होता है आने जाने का, आप वो भी बचा लेते हो. सो ये हमारे पास हॉस्टल अवेलेबल होते हैं. ठीक है. एक बात बता दूं कि बेसिकली जो AQ में खाना है दैट्स सब्सिडाइज्ड. ये बड़ी अच्छी बात है, बच्चों को पता नहीं होता. सो आज जैसे आज रात बीफ हलीम है हमारे मेन कैफेटेरिया में, तो उसका जो कॉस्ट है ना, अगर बच्चे गेस्ट भी लगा ले कमेंट सेक्शन में, इट्स ओनली ₹60. So ₹60 में you get 2 बड़ी बड़ी नान and you get हलीम की पूरी प्लेट, जो आप जिसमें आपका पेट भर जाता है. So that's subsidized. बिरयानी is Tuesdays को, तो Tuesday lunch is बिरयानी for example. We have vegetarian options every day. So जो खाना subsidized है, तो हमारा जो एक लंच होता है या डिनर होता है, ब्रेकफास्ट होता है, वो बड़ा सस्ता होता है. ₹60 का जो चिकन वाला बीफ वाला खाना होता है, एंड ₹35 का एक्चुअली हमारा वेजिटेरियन. तो अगर जैसे आलू की भुर्जिया हो गई फॉर एग्जाम्पल या पालक बन गई, तो वो ₹35 की होती है. तो इट्स वेरी चीप एज वेल. तो ये भी फायदा होता है. सो 5 साल के लिए आपका एटलीस्ट खाने का खर्चा बहुत रिड्यूस्ड और मिनिमल हो जाता है. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. राइट. सो हम AQ कोर्स की बात कर लेते हैं बिफोर आई गिव द माइक टू फातिमा एंड मरियम. सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव बीन रीचिंग आउट टू मी एंड दे से कि हसनैन भाई हम लोग ने एकेडमी ज्वाइन की हुई है, किप्स, स्टेप स्टार्स, यूजर, अनीस हुसैन, डॉक्टर ज़ैन, देयर सो मेनी एकेडमीज इन पाकिस्तान नाउ, राइट? बट दिस इज कि सर हसनैन भाई हमने जब ज्वाइन की थी तो वी वर प्रॉमिस कि हमें वो AQ का कंटेंट पढ़ाएंगे, बट हसनैन भाई हमने ज्वाइन तो कर लिया बट दे हैव नॉट बीन टीचिंग अस एनीथिंग रिगार्डिंग AQ. तो दिस इज व्हाई वन ऑफ द रीजंस व्हाई वी लॉन्च्ड आवर कोर्स. इसके साथ में अगेन आई रियली फेल्ट कि यार जो कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बच्चे हैं ना, दे हैव all the resources available, right? They have everything, they have seniors, they have contacts, but there are so many students जो all across Pakistan से apply करते हैं AQ, जिनका बड़ा जुनून होता है, especially the north section, for example, the north, चित्राल, गिलगित, हुंजा, वहां से बहुत बच्चे apply करते हैं.
we have so many kids applying from, let's say, South Punjab, Rahim Yar Khan. These are all kids, these are all, you know, cities जहाँ से बच्चे AQ में आए हैं मेरे बैच में, and I really want कि यार वहाँ के भी बच्चों की representation AQ में हो. So उसी के लिए फॉर एग्जांपल हमने कोर्स लॉन्च किया था, एंड द आइडिया वाज कि जो बाकी एकेडमीज मिस आउट कर रही है कि वो आपको झूठा एक फॉल्सिफिकेशन दे रही है कि हाँ हम आपको पढ़ा देंगे पूरा AQ का, वो नहीं पढ़ाते. यू नो, मैथ्स एंड साइंटिफिक रीजनिंग तो कोई भी नहीं पढ़ाता, वो बस बोलते हम पढ़ाएंगे, एट द एंड कोई नहीं पढ़ाता. तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, इट्स बीइंग टॉट बाय स्टूडेंट्स हु हैव गॉटन इनटू AQ और हु हैव पास्ड द टेस्ट, राइट. तो आई वांट किड्स, मैं यही सबको समझाता हूँ कि यार देखो, देयर आर टू टीचर्स. वन टीचर इज जो मतलब फॉर एग्जांपल 20 साल से पढ़ा रहा है, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, पर ऑब्वियसली वो हमने पुराने तौर तरीकों से पढ़ा रहे हैं, दे डोंट इवन नो द अपडेटेड सिलेबस, सही है ना. बट जो फॉर एग्जांपल आपका सबसे यंग टीचर होगा, जो अभी अभी गुजर के आया होगा, उसको निमोनिक्स याद होंगे, उसको पूरी बुक हिफ्ज हुई होगी, तो वो बताते हैं कि यार मैंने एग्जाम दिया है, ये चीज हाई यील्ड है, ये चीज जरूर करके जाना. तो हमने जानबूझ के ना, वी हैव ऑप्शंस अवेलेबल ऑफ ओल्ड टीचर्स एज वेल, बट हम लोग जानबूझ के यंग टीचर्स रहते हैं, वो पास द AQ टेस्ट रिसेंटली और मे बी अ ईयर अगो, ताकि वो बच्चे आपको बेस्ट बता सके कि यार हमारे एग्जाम में ये आता है ना, फॉर एग्जांपल आपको ये चीज पे फोकस करना चाहिए, AQ की तैयारी इस तरह होती है XYZ. तो ये बहुत जरूरी है. सो दिस इज व्हाई आवर कोर्स इज एक्चुअली कवर्ड बाय स्टूडेंट्स हु गॉटन इनटू AQ, नंबर 1. दूसरा यह है कि हम लोग जो सारे साइंसेस है, बायो केम फिजिक्स और साथ में मैथ्स एंड SR भी पढ़ा रहे हैं. सो लॉट ऑफ किड्स से कि सर हमें तो साइंसेस पढ़ा रहे हैं एकेडमी में, आप बस मैथ्स एंड SR पढ़ा दो. मैं सबको बच्चों को समझाना चाहता हूँ कि देखो यार, अकेडमी में जो आपको वो साइंसेस पढ़ा रहे हैं ना, अगर उस पर आप भरोसा करोगे तो शायद एडमिशन मुश्किल है. आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, सही है ना. बिकॉज वो आपको फुल रट्टे वाली चीजें पढ़ा रहे हो, तो ये पढ़ लो वो पढ़ लो याद हो जाएगा, नहीं. एग्जाम AQ का बहुत अलग है. सो आई रियली सजेस्ट एवरीवन कि जो साइंसेस भी हैं उसके भी फोकस करो, सही है ना. और इसके साथ में जो हमारे पास मैथ्स एंड SR है, वो तो एक 100% चीज है जो हर बच्चे को लेनी चाहिए, अगर वो मैथ्स एंड SR में वीक ना भी हो. बिकॉज ऑनेस्टली द मैथ्स एंड SR सेक्शन इज समथिंग वी हैव नॉट डन बिफोर, तो आपको डेफिनेटली ट्राई आउट करना चाहिए. सो हम आपको 4 महीने का एक कोर्स दे रहे हैं. द आइडिया है कि पहले आपके जो हमारे पास पूरे 2 से 2.5 महीने हैं, उसमें हम आपको पढ़ाएंगे पूरा का पूरा जो सिलेबस है, राइट. सो एवरी डे देयर बी अ क्लास, देयर बी अ क्लास, उसमें आपको नोट्स से हम पढ़ाएंगे, सही है ना. वो नोट्स टीचर एनोटेट करता है जिस तरह बोर्ड पे करता है, वो आपके साथ शेयर भी हो जाएंगे. जो अकेडमी से आप बैठ के रट्टा मार के जल्दी लिख रहे होते कि यार ये लिख ले जल्दी से हमारे टेक्स्ट बुक में, तो वो आपके साथ शेयर कर देंगे. दिस इज वेरी नाइस डैशबोर्ड वी मेड. इसके साथ में आपको हर क्लास के बाद होमवर्क मिलेगा. सो विल गिव यू 10, 15, 20, 30 क्वेश्चंस के यार फातिमा, मरियम आपको ये सवाल करने हैं फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, हमने आपको ये सवाल करने हैं, एंड आपको पूरा डैशबोर्ड मिलेगा कि आपकी परफॉर्मेंस आप देख पाओगे कि यार मैं AQ अप्लाई कर रहा हूँ, मेरे जैसे 300 बच्चे आ गए, तो वो किस तरह परफॉर्म करे. तो वहीं से एक आइडिया हो जाता है कि कितने पानी में बनता है, सही है ना. उसके बाद वंस द एंटायर सिलेबस इज डन, तो हम लोग आपको प्रैक्टिस सेशंस करवाएंगे. सो इट्स अगेन टेस्ट. तो आपको हम दबा के एवरी डे क्वार्टर टेस्ट देंगे, फुल टेस्ट देंगे. मतलब फॉर एग्जांपल एक हम दिन पूरा मॉक करवा देंगे आपका, तो एवरी डे देयर विल बी एन एग्जाम हैपनिंग. आप आओगे, आप क्वेश्चंस करोगे और इवनिंग में उसका डिस्कशन होगा, ताकि जो भी आपके सवाल हैं, जो भी आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हैं, वो सारे के सारे कवर हो जाएं, राइट. देयर आर सम कॉन्सेप्ट्स जो हम आपको फ्री में दे रहे हैं. सो वी आर गिविंग यू 8 AQ मॉक्स, 8 क्वेश्चंस, 8 पेपर्स एक्चुअली, जो पूरे AQ के एक्चुअली एग्जाम पैटर्न में बने हुए हैं, जो 100 क्वेश्चंस का आ रहा है उसी फॉर्मेट में बने हुए हैं, और सब आपके पास अवेलेबल होंगे. सो यू कैन जस्ट गो एंड अटेम्प्ट दोस एज वेल. इसके साथ में आपको हम लोग अभी, अगर आप कोर्स के लिए आउटलाइन भी करते हैं, हमारे पास साइन अप करते हैं, तो उसमें सीन ये है कि आपको जो हमारे पास AQ के और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के जो फॉर एग्जांपल सारे चैप्टर टॉपिकल क्वेश्चंस हैं, वो भी आपको मिल जाएंगे. तो इस तरह ये भी कवर हो गया. और इसके साथ इस तरह मैंने बताया कि आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप मिलेगा, जहां पे एवरी टाइम 24/7 देयर विल बी टीचर्स अवेलेबल, स्टूडेंट्स हु गॉटन इन, एंड यू विल बी बेसिकली गिवन आपकी सारी की सारी जो फॉर एग्जांपल गाइडेंस है ऑन व्हाट्सएप, ठीक है. कैन यू मूव ऑन प्लीज हमना, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो मैंने जिस तरह बताया कि आपको हम लोग मॉक्स भी दे रहे हैं, सही है ना. 6000 क्वेश्चंस आपको हम एक्सेस दे रहे हैं, सही है ना. जाके वेबसाइट देखें अभी, सही है ना, एंड अटेम्प्ट ऑल ऑफ दोस क्वेश्चंस. सो चैप्टर टॉपिकल क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, 8 मॉक्स भी मिल रहे हैं, ठीक है. सो यू कैन गो एंड एनरोल ऑन आवर वेबसाइट, सही है ना. अगर कोई सवाल हो, देयर इज हमारा व्हाट्सएप भी है, हमारे पास इंस्टाग्राम भी है, जस्ट रीच आउट, आस्क ऑल द क्वेश्चंस, आपको हम प्रॉपर गाइडेंस देंगे. इसके साथ में एक लास्ट चीज मैं बताना भूल गया कि हम लोग इवन संडेज बेसिकली ऑफ डे होता है, तो हम बच्चों को बोलते हैं छुट्टी मारो, बट हमेशा हम वीकेंड्स पे एक करते हैं गाइडेंस सेशन. तो वी फील कि यार देयर इज सो मेनी एस्पेक्ट्स अबाउट द AQ एग्जाम, स्टेज 2 फॉर्म, इंटरव्यू, जैसा मैंने बताया एग्जाम डे प्रिपरेशन, कॉन्फ्रेंस किस तरह लेकर आना है, फॉर एग्जांपल रिसर्च किस तरह कर सकते हो. तो एवरी वीकेंड हम लोग एक गाइडेंस सेशन करवाएंगे, जिसका होस्ट हर हफ्ते चेंज होगा,
एंड वो AQ का स्टूडेंट होगा, तो वो आके फॉर एग्जांपल एक दिन आपको बताएगा कि यार अगर आपका AQ का एग्जाम लेट्स से एक हफ्ते में, तो आपको क्या करना चाहिए। अच्छा, आपका AQ का एग्जाम अगले दिन है, आपको किस तरह तैयारी करनी है, आपको क्या मोटिवेशन चाहिए। आपका फॉर एग्जांपल लेट्स से AQ टेस्ट क्लियर हो गया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, स्टेज 2 का फॉर्म एक अलग मुसीबत होती है। सो अगर आप कोर्स आउटलाइन फॉर एग्जांपल कोर्स में आप पूरा साइन अप करोगे, जो AQ का प्राइवेट यूनिवर्सिटी कोर्स है, तो उसमें आपको सब चीजों का एक्सेस मिलेगा, ठीक है। इसके साथ में आपको फॉर एग्जांपल जो आपको मैंने बताया टीचर गाइडेंस, मेंटरशिप मिलेगी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको होमवर्क मिलेगा, आपको क्लासेस मिलेंगी, और आई थिंक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना, टिप्स एंड ट्रिक्स मिलेगी। आई थिंक अकेडमीज आपको जो फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो मैं सोलो पढ़ लूंगा, मुझे जरूरत नहीं है, तो वो चीजें आप मिस आउट करोगे, जिससे आई रियली फील कि आपका शायद एडमिशन ना हो, और मे बी someone who joins our course उनका एडमिशन हो जाए। A lot of kids ask us about the success rate and all, so हमने लिटरली फुल मैंने बैठ के खुद बच्चों के साथ काम किया है, मॉक इंटरव्यूज करवाए एंड ऑल, एंड सक्सेस रेट इस तरह रहता है कि जो भी हमारे कोर्स में रोल करता है उसमें तकरीबन 50 बच्चे ऐसे होते हैं जो हमारे AQ के क्लास में आ जाते हैं, राइट। सो मैं भी आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी ही आई विश आई हैड द पिक्चर एडेड ओवर हियर। तो मैं कॉर्ड, हमारा जो एक एरिया जहाँ पे सारे बच्चे भी ना ऐसे cafeteria भी बना हुआ है, so kids were just standing there, so they came to me and they said, oh you are Hasnain bhai, we've seen your videos and all, हमने आपकी वीडियो देखी थी एग्जाम से एक दिन पहले, एग्जाम से 6 घंटे पहले, एग्जाम की सुबह। मैंने कहा भाई आपको बड़ा टाइम उस वक्त मिला देखने की वीडियो। तो कहते हैं वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू इन पर्सन एज वेल, कैन प्लीज टेक अ पिक्चर विद यू। तो मैंने उनको बोला चलो एक एक करके बताओ आप कौन सी सिटी के हो, एंड आई वाज सो हैप्पी टू फाइंड आउट कि वो में से कोई भी कराची का नहीं था, they were all from random cities all across Pakistan, and सब ने pre-med use किया होता है, they had used the mocks, they had used the course, they had used for example जो teachers के guidance sessions है, so बड़ी खुशी मिलती है। मेरे कंसल्टेंट है अभी, आई एम रोटेटिंग रियोलॉजी में, डॉक्टर रजीउद्दीन बेयाबानी, तो ऑल द कंसल्टेंट्स नो मी इन AQ, तो आई एम लाइक हाउ डू यू नो, मतलब मैंने तो कभी जाकर किसी कंसल्टेंट को तो नहीं बेचा अपना मंजन की यार हाँ देखो प्रीमेड चला रहा हूँ और 1,20,000 बच्चों की हेल्प की है। सो टर्न्स आउट कि मजे की बात तो ये है कि जब बच्चे आते हैं ना, सो दे आर इंटरव्यूड बाय द फैकल्टी, राइट, मे बी अ डॉक्टर, मे बी समवन इन द एडमिन, तो वो जाके बच्चे जो डॉक्टर को बताते हैं कि आपके यूनिवर्सिटी में एक बच्चे हसनैन मनकानी के नाम से, और हमने उनका प्लेटफॉर्म यूज किया था। तो इट्स वेरी, अभी जैसे डॉक्टर उस्मान फहीमी इज अ वेरी फेमस इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट फ्रॉम येल, व्हिच इज अ वेरी वेरी फेमस इंस्टीट्यूशन, इट्स एन आईवी लीग। तो वो कहते हैं आई नो अबाउट यू, यू हैव अ को-फाउंडर एज वेल। तो मैंने कहा सर आपको किसने बताया। सो टर्न्स आउट कि वो बच्चे ने उनकी पूरी कहानी बता दी थी। आज मैं खड़ा हुआ था अपने क्लिनिक पे, तो उनने वीडियो ऑन की, तो मैं हट गया, मैंने कहा सर आप बात करें, कहते नहीं नहीं तुम सेलिब्रिटी हो, तुम तो टीवी पे आते हो। तो मैंने कहा सर आपको किसने बताया। तो पता चला वो बच्चे ने बताया था उनको कि हाँ भाई हसनैन मनकानी 5th ईयर का बच्चा है, वो तो टीवी पे आ चुका है शार्क टैंक पे। तो इट्स अ वेरी अब से कंफर्टिंग फीलिंग है, मतलब यार ऑल अक्रॉस पाकिस्तान हमने अपने विंग्स फैला दिए हैं एंड किड्स आर यूजिंग द प्रोडक्ट। सो मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि मेक श्योर टू गो टू द वेबसाइट, मेक श्योर टू साइन अप, गेट द कोर्स ASAP। वी हैव अ डिस्काउंट रनिंग again, we also are offering a discount अलग से 25,000 rupees का, which is completely affordable I feel, compared to academies that are charging more than 1 lakh rupees. I won't take names, but academies are charging over 1 lakh rupees, और वो कहते हैं कि हम AQ का पढ़ाएंगे, पढ़ाते नहीं है। There's also a coupon code that you guys can use. सही है ना। आपको अगर चाहिए है तो रीच आउट टू अस ऑन इंस्टाग्राम, रीच आउट टू अस ऑन फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया, एंड हमारे कमेंट बॉक्स में भी हम ऐड कर देंगे, तो यू गो एंड यूज दैट एज वेल, तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसके साथ जिस तरह मैंने बताया कि अभी फॉर दिस प्री एनरोलमेंट ऑफ द कोर्स आपको हमारा जो AQ का चैप्टर्स का जो टॉपिकल सेक्शन वाइज है जिसमें 6,000 सवाल है वो आपको साथ में फ्री मिल रहा है। इफ यू आर लेट, इफ यू ज्वाइन लेट, तो आपको नहीं मिलेगा। और लास्टली आपको जो भी लाइव लेक्चर्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। द कोर्स स्टार्ट्स ऑन द 15th ऑफ February, सो हम जस्ट मेक श्योर कि आप जरूर उसको इनरोल करें। कोई और सवाल हो तो प्लीज रीच आउट टू मी और आवर सोशल मीडिया एंड वी विल मेक श्योर टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ठीक है, so over to Fatma and Mariam to cover the Ziauddin University and all the other private universities in Pakistan. Okay, hi everybody, back to me. So Hasnain भाई ने आपको सारा AQ का समझा दिया है. So we're quickly gonna cover up Ziauddin University. ठीक है, एडमिशन क्राइटेरिया मेजरली हर यूनिवर्सिटी का सेम ही है. आपके FSC में मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एंड MD CAT इज मस्ट. MD CAT आपने पास करना है and there's gonna be an interview, there's gonna be an aptitude test which you guys have to pass. उसके अलावा you guys should have a good strong grip in English language as well. ठीक है, आपको रिटन आनी चाहिए, वर्बली आपकी इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए. दैट इज़ अ क्राइटेरिया. ओके,
उसके अलावा इफ़ यू गाइस हैव डन GCSE कैम्ब्रिज या फिर आपने ए लेवल किए हैं, अमेरिकन हाई स्कूल डिप्लोमा है आपकी, बाय द वे दिस इज़ फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। मूविंग अहेड, इफ़ यू हैव एनी अदर काइंड ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड डिप्लोमा, तो उसका आपको एक इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट लेना होता है IBCC से, विच यू गाइस हैव टू सबमिट टू द इंस्टीट्यूट। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, अब आ गया हमारे पास पेपर पैटर्न। पेपर पैटर्न में आपके पास होंगे 100 MCQs, जिसमें यू गाइस विल हैव साइंस सेक्शन होगा, जनरल नॉलेज सेक्शन होगा, मैथमेटिक्स आपके पास होगी, ठीक है। और एंड ऑल द सिलेबस इट इज़ गोना बी योर FSC का सिलेबस जो आपने फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऑल राइट, फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कॉलरशिप्स, ठीक है। तो ज़ियाउद्दीन की एक प्रॉपर कमिटी होती है, ठीक है, जिसमें वो प्रोवाइड करते हैं स्कॉलरशिप्स, फाइनेंशियल असिस्टेंस टू दो स्टूडेंट्स जो कि जिनको नीड होती है, ठीक है। उनको डिफरेंट फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम के ज़रिए से स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड की जाती हैं, ठीक है। प्लीज़ मूव अहेड। Okay, now we are on to Fatma, please. Fatma, please continue. Hi everyone, Fatima Umar this side. I'm a CA manager and I'm going to talk about Shifa University. तो सबसे पहले अगर हम शिफा यूनिवर्सिटी की क्राइटेरिया की बात कर लें तो you need to have a minimum of 60% in your FSC exams, in your 12th exams. And अगर आपने like FSC नहीं की, you have done A levels or something, you need to have an equivalent certificate, okay? So bio, chemistry and physics, either physics or math, these should be the subject combinations that you go for ताकि you become eligible for Shifa University. इसके अलावा you need to have passed your provincial MDCAT. आपके अपने province का जो MDCAT होता है, UHS MDCAT या KMU MDCAT, आपको अपना जो MDCAT है वो भी पास करना है and you need to have like good marks in it to be considered. इसके अलावा अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं तो अगर obviously you will have given the SAT exam, तो SAT exam में आपका minimum score होना चाहिए 550. और अमेरिका में जो MDCAT होता है, MCAT होता है उनका, या अगर आपने फॉरेन UCAT एग्जामिनेशन दिया तो आपका केमिस्ट्री, बायो एंड आइदर फिजिक्स और मैथ में you need to have at least 50% marks. Okay? और फिर बस यही, if you're a GCSE student, GCSE students are those from UK, they are foreign students, तो आपको भी IBCC से equivalent certificate लेना पड़ेगा FSC का. Okay? So next slide please. Right. So another important thing is obviously the paper pattern. Paper में जाने से पहले आपको idea होना चाहिए कि paper में आना क्या है. तो paper में total 100 questions होने हैं. Okay. It's gonna be 2 hours long और हर MCQ की 4 नहीं 5 options होनी है. Okay. So there's gonna be 5 options for each question. Okay. आपने paper को गौर से पढ़ना है और जैसे आप normally like any entrance exam bubble sheet भरनी है और 100 में से जो 70 MCQs हैं they're gonna be from physics, chemistry, math and current affairs. So please stay updated on current affairs because a lot of students they're going to walk in completely clueless और फिर इस तरह के सवाल आएंगे और वो कहेंगे ये तो हमने कहीं पढ़ा नहीं, but current affairs पे please do focus. इसके अलावा जो बाकी 30 questions हैं they're gonna come from English and analytical reasoning. ये इसलिए है ताकि आपकी ना brain power judge कर सके because you know इस तरह की universities में भी admission लेना is no easy feat and अगर आप काबिल हैं तो तभी आप यहाँ पे पहुँचेंगे और आपकी काबिलियत जांचने के लिए ही this is the paper pattern. Okay, so if you're a local student आपको एक entrance test है by the name of NTS, तो आपको वो देना पड़ेगा. लेकिन अगर आप international applicant हैं और आप proof दे दें कि आपने SAT 2 अपना पेपर दिए हुए हैं तो फिर आपको NTS नहीं देना पड़ेगा. You're exempt from the test. So next slide please. Thank you. Obviously, this is a private university, so many students are gonna ask about the scholarships and financial assistance. So Shifa is like good in this regard. They're gonna offer you 3 different types of scholarships.
पहले नंबर पे हमारे पास आ जाती है द हाई अचीवर मेरिट अवार्ड्स। अगर जो प्रॉफ एग्जामिनेशंस आपकी होती हैं, अगर आपके अपने प्रॉफ्स में अच्छा स्कोर है, देन like 80% aggregates minimum होना चाहिए that to be considered for the high achievers scholarship। तो जिस बच्चे की थर्ड पोजीशन होती है उसको 5% ऑफ, सेकंड पोजीशन वाले को 10% ऑफ, फर्स्ट पोजीशन वाले को 15% ऑफ द ट्यूशन फी। ओके, सो एंड देन वी हैव नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स। तो नीड बेस्ड स्कॉलरशिप्स उन लोगों के लिए हैं, उन बच्चों के लिए हैं जो हैं तो काबिल, लेकिन ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस एंड कंस्ट्रेंट्स वो they are unable to like pay the tuition fee completely। तो फाइनेंशियल असिस्टेंस कमेटी जो होगी वो असेस करेगी कि वाकई is this student like good enough, is the student worth it, and then they will like give that student the need based scholarship। इसके अलावा there's going to be an assistantship if unfortunately खुदा ना खास्ता किसी स्टूडेंट की फादर की या उनके लीगल गार्डियन की उनकी कोर्स ऑफ स्टडी के दौरान डेथ हो जाती है, खुदा ना खास्ता। तो यूनिवर्सिटी द शिफा यूनिवर्सिटी दे हैव सेड कि दे विल गिव दैट स्टूडेंट 25% ऑफ द ट्यूशन फी और उसकी ग्रेजुएशन तक ये असिस्टेंटशिप चलेगी। सो दिस इज something that you should take into consideration before applying। Next slide please। Yeah, so यहाँ पे again it's just the scholarships। So like at a time एक student एक कैटेगरी में सिर्फ एक अवार्ड के लिए एलिजिबल है। ओके, इट्स नॉट के लाइक आप एक कैटेगरी में आपको काफी सारे अवार्ड्स मिल रहे हैं, जस्ट कैन गेट वन। और इसके अलावा 20% फी वेवर दिया जाएगा आपके, आपको किनशिप भी मिलेगी। ओके, सो आपके बाद जो आपके सिबलिंग्स पढ़ने आ रहे हैं उनको 20% फी उनकी वेव कर दी जाएगी। इसके अलावा जो शिफा यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉयज हैं उनके स्पाउसेस को और उनके बच्चों को there's gonna be a 20% waiver। ओके, और एंड पे ये बात हमने कर ली लीगल गार्डियन और फादर वाली। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। राइट, सो अब we're just gonna give you some quick information regarding like दूसरे provinces की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। नेक्स्ट स्लाइड हम ना, थैंक यू। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाओ की। डाओ क्या है? डाओ इज सिंध की एमडी कैट कंडक्टिंग बॉडी। तो डाओ वाले भी प्राइवेट एडमिशंस ऑफर करते हैं। सो द एडमिशंस द प्राइवेट एडमिशंस डाओ ऑफर्स वो सेंट्रलाइज्ड एडमिशंस होते हैं, यानी डाओ ने पब्लिक वाले भी देखने हैं और प्राइवेट वाले भी देखने हैं। इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आपको बताती चलती हूँ। तो इस साल जो लियाकत नेशनल यूनिवर्सिटी है उन्होंने अपने खुद पर्सनली इंटरव्यूज कंडक्ट किए हैं। जो इंटरव्यूज हैं उनकी वेटेज उन्होंने रखी है 10% और अभी मेरिट लिस्ट्स लगेंगी आफ्टर अकाउंटिंग फॉर द इंटरव्यूज। फिर हमारे पास है यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज। ये लोग हमेशा इंटरव्यूज लेते हैं, ये लोग हमेशा इंटरव्यूज लेते हैं बट ओनली 5% काउंट्स, और ये एज अ फॉर्मेलिटी इंटरव्यू होता है just to see कि if you really have what it takes to become a doctor। तो देन वी हैव हमदर्द एंड बकाई यूनिवर्सिटी। ये अपने टेस्ट कंडक्ट करते हैं और इनके जो टेस्ट्स हैं उनकी वेटेज होती है 20%। ठीक है, इनके अपने टेस्ट की वेटेज इज 20%। अगर हम बात कर लें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लाइक ज़ियाउद्दीन अशफा, दे विल लाइक टेक डाउज लिस्ट्स इनटू अकाउंट। जो सारी ये यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट, डाउ की जो सेंट्रलाइज्ड लिस्ट आती है उसको ये ज़रूर लेते हैं इनटू अकाउंट। लेकिन आप जब अपनी प्रायोरिटी लिस्ट पे किसी यूनिवर्सिटी को लाइक रखते हैं तो वो यूनिवर्सिटी आपको प्रायोरिटी बनाती है, वरना चांसेस आर के यू विल नॉट बी कंसिडर्ड। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस इज़ फेयरली स्टैंडर्ड। आपने बस रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट्स पे जाना है, उनके एमबीबीएस और बीडीएस के फॉर्म्स फिल करने हैं विच एवर यू वांट टू अप्लाई फॉर, और फिर आपने डाओ का भी फॉर्म फिल कर देना है ताकि आप सेंट्रलाइज लिस्ट का मतलब एलिजिबल हो जाए उसके लिए। अगर आप सपोज डाओ का फॉर्म फिल कर देते हैं लेकिन अलग से जाके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की वेबसाइट्स पे फॉर्म नहीं फिल करते, देन आपको एज अ कैंडिडेट नहीं कंसिडर किया जाएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हम ना, थैंक यू। सो हेयर वी आर गोना टॉक अबाउट द प्रोविंस वाइज यूनिवर्सिटीज। इसमें हमारा आ जाता है यूएचएस बलूचिस्तान एंड खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज हम ना। Yeah, so I'm going to tell you about UHS and then I'm going to hand over to Mariam. Okay, so UHS क्या है? UHS is basically the MDCAT conducting body for the province of Punjab.
अब एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के लिए इट्स फेयरली सिमिलर। तो हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 4600 सीट्स हैं एमबीबीएस की, और फिर 1075 सीट्स हैं बीडीएस की प्राइवेट सेक्टर में। पब्लिक सेक्टर की इससे काफ़ी कम है, एंड प्राइवेट सेक्टर में वी हैव सब्सटेंशियली मोर। ओके, सो the criteria for applying in private is the same for public. Like eligible होने के लिए अपने MD CAT में आपका score, UHS MD CAT में आपका score should be a minimum of 55% for MBBS and 50% for BDS. लेकिन अगर आप चाहते हैं to become eligible for the merit list, अगर आप चाहते हैं आपका merit अच्छा है, then you need to score much higher. इसके अलावा वी हैव नम्स प्राइवेट कॉलेजेस, जिनको लाइक जो नम्स एफिलिएटेड होते हैं, सीएमएच कॉलेजेस जिनको कहते हैं, जहाँ पे जो नम्स का टेस्ट है उसको एज अ मेरिट बॉटलनेक यूज किया जाता है। व्हाट डज मेरिट बॉटलनेक मीन? कि आपका जो एग्रीगेट है वो यहाँ पे एमडी कैट नहीं, वो यहाँ पे नम्स का टेस्ट डिसाइड करेगा। ओके, सो या दैट वाज, and at the end were private universities, they conduct interviews as a formality. It's just a formality. Yeah. So this was everything about. Oh, I missed the fee structure. Right. So UHS की जो private colleges की fee है वो vary करती है. It can be from anywhere between 1 to 1.45 crore. Yeah, depending on the college. It can be like it can get expensive. So और CMH की अगर हम बात कर लें तो उसकी फीस UHS से कम होती है, CMH affiliated colleges की। It's gonna be like 90 lakh to 1.2 lakh, और ये भी with the college vary करती है। So that was everything about UHS colleges, and now I'm gonna hand over to Mariam. Okay, next slide please, Hamna. All right, so talking about KIMS, कोयटा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, कोयटा में सिर्फ एक ही प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और वो भी नम्स एफिलिएटेड है। ऑलराइट, लाइक यू हैव टू गिव योर नम्स एग्जाम फॉर गेटिंग एडमिशन देयर। उसके बाद वहाँ पर 100 सीट्स हैं, जिसमें से 90 सीट्स आर फॉर बलोचिस्तान डोमिसाइल होल्डर्स, और जो बाकी की 14 सीट्स हैं दोज आर फॉर दो स्टूडेंट्स जो कि दूसरे प्रोविंसेस हैं। Other than that, BDS currently is not being offered KIMS में, but there's a possibility कि future में जाके BDS भी offer करवाई जाए। All right, so next slide please, Hamna. All right, so KMU में centralized admissions होंगी इस साल। What are centralized admissions? तो basically हर province के नहीं, specific provinces में कोई ऐसी university होगी, जैसे हमारे सिंध में है डाउ, which is going to conduct centralized admissions. यानी अगर आपने किसी public university में लेनी है admission, private में लेनी है, तो you have to go through this university as well. ठीक है, like there's some kind of form that you need to fill or something. ठीक है, उसके बाद every private college has 100 MBBS seats, ठीक है, and 50 BDS की सीट्स हैं। 100 आपकी MBBS की सीट्स हैं, 50 आपकी BDS की सीट्स हैं। उसके अलावा खैबर में आपके पास 17 प्राइवेट कॉलेजेस हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। Okay, AKU success blueprints. So we're quickly gonna go through some tips and tricks जो कि आपको आपके एग्जाम में हेल्प करेंगी। All right, so Fatma, please continue. या श्योर। तो सबसे पहला पॉइंट जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये है कि अपने CIEs और अपने बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस रखें। ओके, अपने टेस्ट, अपने एंट्रेंस टेस्ट के पीछे इनको मत खराब करें, बिकॉज दे ऑल्सो हैव लाइक दे मेक अप अ सिग्निफिकेंट चंक ऑफ योर एग्रीगेट। लाइक यू नीड टू हैव लाइक अ गुड सब्सटेंशियल स्कोर इन योर FSC एग्जाम्स एंड योर CIEs, so इन पे बिल्कुल आपने कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। इसके अलावा इफेक्टिव पढ़ाई के लिए आपने ना वो वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं जिनकी यील्ड ज्यादा है। पास्ट पेपर्स में आपने देखना है कौन से टॉपिक से ज्यादा आपको क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, आपने उन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करना है, रादर देन आप वक्त जाया करें उन टॉपिक्स पे जो आपको पहले ही आते हैं और इतने टेस्टेड नहीं है। सो मरियम, ऑन टू यू। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हम ना ओके, तो आपने जिस भी यूनिवर्सिटी की के लिए एडमिशन लेनी है, आपने उसका सिलेबस यू हैव टू प्रिंट इट आउट, यू हैव टू यूज इट एज अ चेकलिस्ट। ठीक है, रेगुलरली आपने उसको देखना है, यू हैव टू गो थ्रू इट। अदर देन दैट, एसएलओस को आपने अगेन एंड अगेन यू हैव टू गो थ्रू दैम। आपने अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखने हैं ताकि यू नो यू डोंट हैव टू गो थ्रू एनी इश्यूज लेटर ऑन आगे चल के। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
Yeah, so आगा खान के लिए प्रिपेयर करने के लिए you need to have consistent practice. ये चीज़ किसी से छुपी नहीं है कि अगर आपके पास नॉलेज है और आपको उसको इम्प्लीमेंट नहीं करना आता तो आपको उस नॉलेज का फायदा नहीं है पेपर में जाके यू विल बी लाइक ओ माय गॉड मैं क्या करूँ अब तो यू नीड टू लाइक प्रायोरिटाइज कॉन्सेप्ट लाइक प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट रहना अपनी प्रैक्टिस में रोज प्रैक्टिस कर रही है एक दिन छोड़ के एक दिन बट प्रैक्टिस में कंसिस्टेंट रहना तो मरियम कैन यू सजेस्ट सम रिसोर्सेज फॉर लाइक प्रैक्टिस फॉर AKU? Absolutely, I'll be so glad. Okay, so आपके पास प्रीमेड है, obviously प्रीमेड पर इतनी सारी resources आपके पास मौजूद हैं. We are providing so many bundles, so many courses for you guys to go through. हमारे उसके अलावा we have another thing, आप SAT के एग्जाम्स, SAT के पास पेपर्स गो थ्रू करें, SAT की मैथ देखें, बिकॉज आपके पास AKU में इसी तरह के सवाल आते हैं. ठीक है, उसके बाद जिस भी आपको यूनिवर्सिटी में जाना है उसके पास पेपर्स आप गो थ्रू करें. अदर देन दैट इफ वी टॉक अबाउट के बायो केमिस्ट्री या फिजिक्स आपको किस किस बुक से पढ़नी चाहिए, तो बायोलॉजी PTB की बहुत अच्छी है, केमिस्ट्री भी PTB की बहुत अच्छी है, गो फॉर दैट. उसके अलावा फॉर फिजिक्स STB सिंध, सिंध की बुक पढ़ें, सिंध की बुक बहुत अच्छी है, you guys should go for that. Okay, next. Yeah, All right, I guess that's it. yeah, that was all the slides. So, guys, thank you for Okay. watching, and we're gonna field questions now. But before I do that, इस live की description में मेरा, मरियम का और आगा खान का guidance groups के links दिए हुए, तो do join them. And if you have any questions, drop them there. We will answer Yes. them. Okay. If you have any questions Yes, regarding the guys, please go course, for it. regarding AKU, regarding private unis, me and Mariam, we will answer. The description में links है, so do join. Okay. And now Yeah, I guys, guess go ahead. yeah, and now I guess we're gonna field questions in the comments for a little while till the webinar ends. तो आप लोगों के questions हैं तो ask in the comment section, guys. Right. So I just want to give a follow-up few tips and tricks from my end as well. So जिस तरह पहली slide थी कि focus on your CAIs, that's very very important. So focus on your inter and CAIs exams because again, AQ का कभी पता नहीं होता. You know, I've seen people who were not prepared at all, but because उन्होंने अपने CAIs पे बहुत ज़्यादा focus किया से they got in. So focus on concepts, सही है ना? Focus on practicing questions. I think Fatma Mariam listed all the resources possible. मैं बच्चों को ये बोलता हूँ कि अगर लेट्स से अगर एक क्वेश्चन बैंक खत्म हो गया, so try doing the MD-CAT one, right? Because at the end आपको MD-CAT की भी तैयारी साथ में हो जानी है. Both things go hand in hand. इसके साथ में फॉर एग्जांपल अगर आपको और चैलेंजिंग क्वेश्चंस डालें तो एवरी डे वी आर एडिंग मोर मॉक्स, एवरी डे वी एडिंग मोर क्वेश्चंस टू आवर वेबसाइट. वी कीप अपडेटिंग एवरीवन. सो मेक श्योर कि आपके पास हमारा ऐप हो एंड्रॉइड पे, हमारा इंस्टाग्राम डला हुआ हो, तब सबको बताते कि यार आज हमने ये डेक में फॉर एग्जांपल ऐसे 500 क्वेश्चंस और ऐड किए. सो इट्स a small and gradual process, but we are adding questions and we are adding very good questions because I genuinely have gotten the best reviews के हंसने भाई जो आप लोगों ने questions डाले हुए प्रीमेट पे, वही लगता है कि एग्जाम में उस तरह के सवाल आ रहे होते हैं. इसके साथ में जो गाइडेंस सेशंस हैं, इस तरह के वेबिनार्स, प्लीज डू ट्राई टू अटेंड देम. सही है ना? अगर अभी ज्वाइन नहीं करना, ट्राई टू लिसन टू देम आफ्टर एट 2x स्पीड बिकॉज आई थिंक यहीं से आपको इतनी नॉलेज मिल जाती है. इतने जो एग्जाम है आपको जब जाओगे ना, याद रखना हंसने भाई के अल्फाज के टाइम करंट होता है एग्जाम में. सो यू विल रिमेंबर कि यार वो गाइडेंस सेशन अगर हमने ले लिया होता तो हमारा बड़ा फायदा होता है कि किस तरह हम लोग टाइम को नेविगेट कर सकते हैं, किस तरह हम लोग फॉर एग्जाम्पल मैथ्स एंड SR में अच्छे तरीके से तुक्के मार सकते हैं, किस तरह हम लोग साइंसेस में process of elimination कर सकते हैं. And the course is literally just built for that. So again, it's not just पढ़ाई, but it's also all those tips and tricks जो बच्चों को नहीं पता होती हैं. अब मैं वेबिनार करता हूँ, there's so much stuff that just gets missed. वो कोर्स के बच्चे are like our family. तो हम एक अहद उठाते हैं, like you know, the teachers, the faculty, the admin, people like me. Admin मतलब हमारा कोर्स admin, not like AQ admin. But हम एक अहद उठाते हैं कि यार हमें बस इस बच्चे का एडमिशन करवाना है. So we really strive for the students admission. तो इसी तरह अगर आप लोग को बहुत एस्पिरेशन है, बहुत ड्रीम है, बहुत शौक है कि यार AQ में आना है, इट्स अ फिनोमिनली ग्रेट यूनिवर्सिटी, एवरीथिंग अबाउट इट इज परफेक्ट, तो जरूर आप कॉन्फिडेंस के साथ एक कोर्स लें. जरूर आप फॉर एग्जांपल मरियम, फातिमा मुझे रीच आउट करें, हमारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे रीच आउट करें. विल हेल्प यू गाइज आउट. और इसके साथ में जो भी आपके सवाल होंगे, बर्निंग क्वेश्चंस, विल ट्राई टू आंसर देम. सही है ना? कुछ सवाल हम कर देंगे, कुछ सवाल पे आप लोग कोर्स पे ज्वाइन करके कर सकते हैं. एंड आई थिंक सबसे लास्ट बात बिफोर वी फीड द क्वेश्चंस इज द फैक्ट दैट आई थिंक फॉर ऑल ऑफ यू, अगर मुझे कोई पूछे ना कि बेस्ट टिप एंड ट्रिक क्या होगी, तो मैं ये बोलता हूँ कि यार आई थिंक यू नीड अ पार्टनर.
सही है, शादी की बात नहीं कर रहा हूँ, बट ये कह रहा हूँ कि when you are applying for AQ, you need someone who is your loyal friend who is also applying and is in the same boat. They are also in the same energy and aspiration and motivation. कोर्स में यही हो रहा था कि ऑब्वियसली 200 बच्चे साथ होते तो उनको पता था यार ये बच्चे मेरे स्कूल का, ये बच्चे मेरी सिटी का, तो मैं इनसे थोड़ा बॉन्डिंग कर सकता हूँ. बट मोर देन दैट इट्स अबाउट दैट अकाउंटेबिलिटी फैक्टर, राइट. एंड हम वो कोर्स में दे रहे होते हैं, हम बच्चों को वही मोटिवेशन दे रहे होते हैं. अभी आस्क कि भाई मरियम आपको आपने होमवर्क दिया था, आपने क्यों नहीं किया? बिकॉज अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है तो इट्स वेरी इजी, बिकॉज यू आर ओनली 6,000 इन द 2 लाख किड्स हु आर गिविंग द एमडी कैट. तो वेरी इजी टू फील कि यार हम लोग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो 2 लाख बच्चे एमडी कैट दे रहे हैं हम वही चीज कर लेते हैं. बट यार AQ इज AQ फॉर अ रीजन. AQ का ग्रेजुएट इज गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस. मैं अभी भी रीच आउट करता हूँ फैकल्टी को इन द US, तो वो कहते हैं ओह यू फ्रॉम AQ, विल टेक यू, बिकॉज उनको पता है वो AQ में क्लास और डिफरेंस है जो बाकी इंस्टीट्यूशंस में नहीं है. सो जस्ट वी हैव टू कैश इन ऑन दैट. सही है ना, जस्ट मेक श्योर कि यार एक चांस मिलता है, वर्क सुपर डुपर हार्ड. सही है ना, अभी से कर लो, फेब से लेके फॉर एग्जांपल जून तक, फिर जून के बाद फॉर एग्जांपल जुलाई तक, और जुलाई से लेके एमडी कैट तक जान मारो अपनी, एंड ट्राई टू गेट इनटू अ गुड मेडिकल स्कूल. ट्राई टू गेट इनटू योर ड्रीम मेडिकल स्कूल, बिकॉज फिर क्या होता है, एक दफा हो जाता है ना, फिर 5 साल का सुकून होता है, ताकि बस आपका हो गया फिर कोई निकालता नहीं है, बस एग्जाम पास करना होता है, अगले साल में जाना होता है, मजे भी होते हैं. सो जस्ट ट्राई टू वर्क सुपर डुपर हार्ड. यू बीन प्रैक्टिसिंग फॉर दिस, प्रिपेयरिंग फॉर दिस stretch of exams for the last like what 12-13 years of your life. कब से आप लोग यूनिवर्सिटी, कब से आप यूनिवर्सिटी की तैयारी के लिए कॉलेज में, लेकिन आपने पढ़ रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो क्लास 1 से. So now this is the time to shine. And if you have any questions, please feel free to reach out us on our social media. We'd love to answer all your questions. So I'm gonna also look at the comment box right now. So again, जो सवाल होंगे, अगर फातिमा मरियम का आंसर दोस्त वो भी कर लेंगे या फिर हम भी कर दें, ठीक है. So someone has mentioned कि my friends are all engineering students. तो बिल्कुल यही बात है शहीद, तभी हम लोग ये कोर्स लॉन्च करते हैं कि यार आपको अगर अपने इर्द गिर्द में कोई दोस्त नहीं मिल रहा, so through our course you can find those friends who are also applying and are in a similar boat. ठीक है. इसके साथ में सर हसन, हाउ कैन आई कांटेक्ट यू? सो आई एम पार्ट ऑफ ऑल द गाइडेंस ग्रुप्स. आई आल्सो अ डिफरेंट नंबर जिसमें मैं सिर्फ AQ गाइडेंस देता हूं, उसमें वो DP भी ना AQ की लगी हुई है, तो जस्ट मैसेज ऑन दैट नंबर एज वेल. एंड आई हैव आल्सो शेयर्ड अ नंबर ओवर है, मैं वापस अभी जाता हूं चैट बॉक्स पे, रीच आउट ऑन दिस नंबर एंड यू कैन कांटेक्ट मी एंड द एंटायर टीम. सही है. क्या AQ में इंग्लिश बोलना बिल्कुल जरूरी नहीं है? आई थिंक AQ में द फर्स्ट सेशन दैट हैपेंस इज एक्चुअली ऑन उर्दू, बिकॉज अ लॉट ऑफ kids are very worried, because I think आपको for example there is a lot of patients coming in AQ who speak Urdu, उनको इंग्लिश नहीं आती है, so वो आपको उर्दू पे भी प्रेफरेबल देते हैं. And there's people who've been rejected from AQ because उनको सिर्फ इंग्लिश आती थी. तो it's bilingual. सही है ना. There are a lot of difficult words, organs के names, diseases, for example physiological processes, जिनके आपको उर्दू terms नहीं आने चाहिए obviously when you are applying, but AQ आपको सिखाता है ताकि आप लोग अपने क्लिनिक्स में राउंड्स में उर्दू में पेशेंट से बात करें. सो कोई इंग्लिश की जरूरत नहीं होती है, ठीक है. मिनिमम मार्क्स मैंने बताया, AQ स्कॉलरशिप इज नॉट बेस्ड ऑन मार्क्स, इट इज बेस्ड ऑन नीड बेसिस. तो जिसके ज्यादा सबसे ज्यादा डिजर्विंग बच्चा होगा, हु नीड्स द मोस्ट हेल्प, उनको स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है. मैंने बहुत ज्यादा डिटेल में बताया है गाइस, देयर इज अ वीडियो ऑफ as well. हम एक गाइड भी लगाने वाले अबाउट द स्कॉलरशिप एंड एड एंड फाइनेंसेस. तो प्लीज डू मेक श्योर टू फॉलो अस एवरीवेयर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे, एंड मेक श्योर टू यूज दैट गाइड, ठीक है. फी स्ट्रक्चर, सो देखिए जो फी स्ट्रक्चर है वो AQ पे वेबसाइट पे अवेलेबल है. जो प्रीमियम वो भी भेज देगा इन द कमेंट बॉक्स. एवरी ईयर द फी चेंजेस. सही है ना. इस बार मैंने बताया कि आपको एड भी मिलती है, स्कॉलरशिप भी मिलती है, लोन भी मिलती है. सो वी वुड वांट यू टू गो टू द वेबसाइट एंड चेक आउट द फी स्ट्रक्चर. सही है. इसके साथ में आ जाए हम लोग. I have done my OA levels without attending any high school. नहीं हेरा, कोई फर्क नहीं पड़ता, as long as you have given the exam and you have your transcript, that is fine. They don't really care कि आपने high school में किया हो. As far as the stage 2 form is concerned, a lot of kids ask what is the stage 2 form. So once you pass the test, तो तकरीबन हमारे पास 350 बच्चे होते हैं जिनका टेस्ट क्लियर होता है. सही है ना. And they have इंटरव्यू पहले वो बोलते हैं कि आप अपना एक पैकेज सबमिट करें जिसमें आप दिखाते हैं कि भाई आपकी CV क्या है, आपने क्या पिछले 4 सालों में खाया है अपने स्कूल में, आपने फॉर एग्जांपल क्या इंटर्नशिप्स की, आपने क्या फॉर एग्जांपल को शैडो किया है, आपने क्या रिसर्च किया है, आपने क्या हॉबीज इंटरेस्ट अपने बनाए हैं, आपने क्या सोसाइटीज में पार्ट लिया है. सो दैट इज द स्टेज 2 फॉर्म, ठीक है. वो हम लोग उस पर भी हमारी गाइड बनी हुई है. वी विल आल्सो शेयर दैट कोर्स बच्चों के साथ हम प्रॉपर उनको गाइड करते हैं इसके बारे में, तो मेक श्योर कि आप वो भी एक्सेस करो. इसके साथ में एक LOR वो मांगते हैं, एक्चुअली 2 LOR मांगते हैं कि अपनी फैकल्टी से मांगा करो. सो ऑफन फॉर एग्जांपल जो प्राइवेट बच्चे होते हैं वो नहीं दे पाते, तो उनको हम सजेस्ट यही करते हैं
एग्जामिनेशन टीचर्स हैं या फॉर एग्जाम्पल आप जिनके साथ पढ़ रहे होते हो उनसे भी आप LOR बनवा सकते हो, एंड AQ डज हैव अ रिलैक्स्ड फॉर एग्जाम्पल सिस्टम अबाउट इट, उनको उतना मसला नहीं होता है, ठीक है। मुझे पता है इंग्लिश नहीं चाहिए थी फॉर इंटरव्यू, आई डोंट नो व्हाई गाइस आर अलीशा इज आस्किंग इट अगेन एंड अगेन। मैथ्स क्राइटेरिया फॉर AQ, क्या मैथ्स टफ आती है? बिकॉज हमने 2 साल से बिल्कुल मैथ्स नहीं पढ़ी, बिल्कुल, दैट इज लिटरली व्हाई यू आर रस्टी, और किड्स रस्टी है ना, मैथ्स दे गेट बिट लकी। बच्चों को ये समझाना चाहता हूँ कि यार मैथ्स के लिए मैथ्स एंड SI इज प्रैक्टिस, यू नो, उसके कोई दिमाग नहीं चाहिए है। सो बच्चों को प्रैक्टिस करनी होती है, दे हैव टू गेट द नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू प्रैक्टिस एंड देन समवन टू एक्सप्लेन दोस क्वेश्चंस टू देम। बिकॉज भाई एक मैथ की डबल इक्वेशन का सवाल मैं कर सकता हूँ और सकती है, बट इट ऑल डिपेंड कि मैंने कितने टाइम में सॉल्व किया, फातिमा ने कितने टाइम में सॉल्व किया, यू नो, डू शी नो द शॉर्टकट्स फॉर इट? अगर शॉर्टकट्स नहीं आएंगे तो फातिमा विल स्पेंड लाइक लेट्स से 10 आवर्स ऑन इट एंड शी विल नॉट डू लाइक यू नो बी एबल टू डू द अदर क्वेश्चंस। जब मैंने अगर 2 मिनट में सॉल्व कर लिया देन आई कैन अटेम्प्ट द अदर क्वेश्चंस आराम से। तो ये बहुत जरूरी होता है। तो मैथ्स एंड SI के लिए प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, एंड दैट इज द प्लान ऑफ आवर कोर्स एज वेल, ठीक है। Do gap year ECAs matter? बिल्कुल, I think they do matter. Again, मैं सबको बोलता हूँ these are all secondary things. पहले right now it's a bit late and you guys should all be focusing on getting into AQ. That is the priority. So you have to make sure to pass the test first and then you worry about the stage 2 form. So for kids who are currently in A2, ठीक है? The Shifa Medical College offers scholarship. Fatima Mariam, can you please cover this? Yeah, sure. Okay, so Shifa does offer scholarships. There's 3 kinds of scholarships. They're gonna give you एक उनकी need based होती है, ठीक है? ये उन लोगों के लिए है जो like financially they're not very well off. उन बच्चों के लिए है। एक है assistantship, ठीक है? अगर खुदा ना खास्ता आपके father की या आपके legal guardian की death हो जाती है during your course of study at Shifa, तो आपको 25% ट्यूशन फी पे स्कॉलरशिप मिलेगी और ये स्कॉलरशिप आपकी ग्रेजुएशन तक लास्ट करेगी। इसके अलावा अगर हम बात कर लें मेरिट स्कॉलरशिप्स की, तो जो प्रॉफ एग्जामिनेशंस होती हैं MBBS और BDS स्टूडेंट्स की, उसमें शिफा वाले दे ऑफर मेरिट स्कॉलरशिप्स। तो मिनिमम आपका 80% होना चाहिए इन योर प्रॉफ एग्जामिनेशंस टू बी एलिजिबल। जो बच्चा थर्ड आता है, जो स्टूडेंट थर्ड आता है इन द प्रॉफ एग्जामिनेशंस, उसको मिलता है 5% ऑफ। जो सेकंड आता है दे गेट 10% ऑफ, और जो फर्स्ट आता है उसको मिलता है 15% ऑफ द ट्यूशन फीस। तो दिस वाज ऑल अबाउट शिफा स्कॉलरशिप्स। That's a nice system. ऐसा, so AQ also has this one thing मैं बता दूं, तो it also has a scholarship that once you are in AQ, if you are the top 15% of the batch, alhamdulillah I got it last year, तो आपको एक scholarship मिलती है। इतनी ज़्यादा नहीं होती, but you get around 60-70,000 rupees off from your yearly fees, तो वो भी आपको मिलती है अगर आप top 15 में होते हैं। But that is when you get into AQ, not before it. सही है। AQ does not offer BDS. They have a dental hygiene program, तो उस पे बच्चे enroll करते हैं। They also have faculty of arts and sciences. They have a very robust nursing program, but कोई BDS program per se नहीं है, ठीक है। Study routine for someone doing FSC and MD-CAT at same time. आगा खान का लिए टाइम कैसे निकाले? तो गाइस इसके लिए हमने बहुत सेशंस कंडक्ट किए हुए। we basically do these sessions every week. We talk about this stuff on our Instagram quite often. तो अगर आप लोग फॉलो नहीं कर रहे हो, आई थिंक यही बच्चे जो फॉलो नहीं कर रहे इंस्टाग्राम पे, बिकॉज बाकी बच्चे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं दे विल नो कि हम यही चीजें कवर कर रहे हो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, सही है। Pre-Med basically does have mocks that not resemble past papers, but also कि किस तरह के सवाल AQ में आते हैं। हम लोग बिल्कुल वही पास पेपर के सवाल को डालते नहीं है हमारे बॉक्स में, ठीक है। प्लीज मेंशन योर कॉन्टैक्ट नंबर गाइस। मैंने बताया है कि मैं अभी एक दफा पेस्ट भी कर दूंगा कमेंट सेक्शन में। आप हमारे इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे मैसेज करें, दे विल कनेक्ट यू गाइस टू मी, ठीक है। दैट्स हाउ इट वर्क्स, ठीक है। ओके, इसके साथ में अगर आ जाए हम लोग गैप ईयर ECS मैटर, मैंने बता दिया गैप ईयर का मतलब फॉर एग्जांपल अभी आपको टेस्ट पे फोकस करना है, ठीक है। सर सेल्फ स्टडी विदाउट एन एकेडमी से भी किसी ना कहीं भी एडमिशन को किया है देखियो। हाँ, तो देखिए इसमें मैं ये नहीं बोलूंगा कि अगर आपने हमारा कोर्स ज्वाइन नहीं किया और एकेडमी ज्वाइन नहीं की तो आपका एडमिशन नहीं होगा। आई जस्ट फील इट्स अ गैम्बल एंड आई डोंट लाइक टेकिंग गैम्बल्स। अगर बच्चे तो क्या another 4,999 students who are also very passionate. तो अगर आप अपने जिंदगी के साथ खिलावट करना चाहते हो, तो चलो मैं गेम खेलता हूँ, आई वांट टू प्ले द डाइस एंड सी मेरा होता है नहीं होता है,
be my guest. और मैं उस तरह का बंदा हूँ who really suggests to everyone कि यार just make sure all your holes are covered. You know, there should be not even one hole that's like, you know, uncovered जिसकी वजह से शायद आपका एडमिशन ना हो. Applies to MDCAT, applies to AQ. मतलब वही बात है ना, पिछले 12 साल से आपके माँ बाप ने फीस पे की है अपने स्कूल्स की, फिर आप फॉर एग्जाम्पल वो यूनिवर्सिटी की फीस पे करेंगे, तो वो तो चाहेंगे कि आपके बेटे बेटी का बेस्ट से बेस्ट जगह एडमिशन हो. तो मैं सजेशन सबको यही दूंगा कि यार जान तो मेहनत का टाइम आ गया है, दोस्त हंसी मजाक मस्तियां करें, लेट देम डू इट. अब आप बोलो कि यार आई हैव टू सिट डाउन, मेरे अगले जो 6 से 8 महीने, दिस इज what defines my life, you know. Do I end up doing BTS, do I end up doing for example MBBS, do I end up at AQ, do I end up at a shit university, do I end up at a gap year? It all is defined by the next 8 months. तो जान तो मेहनत करो, इस तरह रखो कि AQ में तो हो ही गया मेरे, और साथ में जो टॉप मेडिकल कॉलेज मेरे प्रोविंस का मेरा वहां भी होना जरूरी है. एंड दिस इज हाउ द मोटिवेशन शुड बी इन योर हेड्स. लास्ट 2 minutes फॉर क्वेश्चंस गाइस, सो मैं और देख लेता हूँ. So unis like AQ and Shifa prefer A-level students who are affiliated with institutions over private candidates. That's absolutely bullshit, honestly. Bullshit. जो पंजाब के बच्चे आते हैं यहाँ पे, they're all FSC students. सही ना, बहुत rarely are A-level kids coming in. So that's bullshit, I think. सही है ना. As far as private का कोई बच्चा versus the institution, I don't think that's true and well at all. Because AQ just wants a kid who really wants to give back and really wants to, for example, help people out, and who is excelling in their academics, who is excelling in their extracurricular as well. तो ये सीन होता है. जो बच्चा फॉर एग्जांपल बिल्कुल किताबी कीड़ा होता है, शायद दे माइट नॉट गेट एक्सेप्टेड एट AQ. और जो बच्चा सिर्फ फॉर एग्जांपल एक्स्ट्रा करिकुलर्स ही कर रहा है और ट्रिपल सी मार रहा है अपने A-levels में, तो उनका भी नहीं होगा. AQ किड्स आर सुपर डुपर होलिस्टिक. वो पढ़ाई में भी किंग होंगे, वो अपनी जिंदगी बैलेंस भी कर लेंगे, और वो साथ में आपके सारे एक्स्ट्रा करिकुलर्स में भी सबसे आगे होंगे. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एन AQ स्टूडेंट, राइट. और हम देख लेते हैं कितना टाइम डेली फॉर AQ. आई थिंक अगर आप फॉर एग्जांपल अभी देखें, हर बच्चे का स्केड्यूल अलग होता है. हमने कोर्स इसी तरह किया है कि वी हैव जस्ट वन topic being taught and one homework. I think around 2 to 3 hours per day is what you guys should be definitely offering, ताकि आपकी AQ में एडमिशन हो सके, सही ना, आराम से. So 2 to 3 hours per day. Last minute guys, सर मैथ्स लेना कितना मंथ लगेगा? अच्छा, मैथ्स पढ़ने के लिए कितना टाइम लगेगा? तो गाइस आई थिंक मैथ्स इज समथिंग कि आप आज से बैठ के बोलो कि मुझे बस मैथ्स की तैयारी शुरू कर देनी है, एंड आई हैव दिस मेनी रिसोर्सेज. प्रीमेट के मॉक से फॉर एग्जांपल प्रीमेट का क्वेश्चन बैंक है, मुझे हर दिन 15-20 सवाल करने हैं, ठीक है ना. अगर ये आज करोगे तो एंड में एग्जाम के लिए आपकी तैयारी हो चुकी होगी. अगर एग्जाम से 2 दिन पहले बैठ के बोलोगे कि मुझे अब जाके मैथ्स और SR पढ़ना है, तो शायद मुश्किल होगा. तो आई थिंक इट्स समथिंग दैट यू हैव टू डू डेली, नॉट के एट द एंड में जाके आप पढ़ोगे. Yes, Fatma, you had raised your hand. Go ahead. Yeah, so I just wanted to say because like time हमारा खत्म हो रहा है, तो people students जिनको अभी questions रहते हैं, तो description में हमने WhatsApp group links दे दिए हैं, तो you guys join and आपकी सारी queries we're gonna resolve there. You can reach out to us on these links, okay? So be sure to join ताकि आपके questions सारे answer हो जाए. बेस्ट है, ठीक है. हम लोग जो आपका कमेंट सेक्शन यूट्यूब वीडियो का है उसको भी लाइव रखेंगे, तो उस पर भी जवाब देते रहेंगे. और साथ में जिस तरह फातिमा मरियम ने बताया, वी शेयर्ड ऑल द गाइडेंस ग्रुप्स की लिंक्स आल्सो इन द डिस्क्रिप्शन, टू मेक श्योर टू जॉइन देम एज वेल. मैंने अपना नंबर भी शेयर कर दिया है, तो वहां पे भी यू गाइस कैन आस्क अस क्वेश्चंस. वरना फातिमा मरियम आर phenomenal people, they know more about AQ than me actually. ठीक है. So thank you everyone. I hope all of you enjoyed the session. If you guys did, make sure to subscribe to the channel as well. Make sure to follow us on Instagram. Make sure to go and sign up on Premad and just see कि हम क्या क्या features offer कर रहे हैं. And इसके साथ में अगर कोई भी सवाल हो, reach out to our associates, reach out to our social media. We would love to help out of all of you. ठीक है. चलो, thank you guys. Take care. Good night and good luck for your preparation. ठीक है. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. Allah Hafiz everyone.